Okay, Malik. So basically, with respect to your chapter 3, हम लोग लास्ट लेक्चर में जा रहे हैं चैप्टर 3 का. ओके, ये ऑलमोस्ट एक 1.5 घंटे का रेंज का ये पर्टिकुलर होगा जिसमें चैप्टर 3 अपना खत्म हो जाता. तो चैप्टर 3 में हम लोग 196 197 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग अवर सेल्फ टू शेड्यूल 5. शेड्यूल 5 का जिक्र अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में, इन लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ 196 when we are discussing about the procedure, we have clearly mentioned that if you are complying with schedule 5, you are not required to take a permission of central government. If there is non compliance, you are required to take a permission of CG. We have discussed this point already. Okay, now please do understand, you need to ratify schedule 5. This is the only schedule which is there in our syllabus completely. So how schedule 5 works and how schedule 5 will go ahead, you need to understand this thing very clearly. Okay, one of the thing I just need to recall, what is the percentage of profit which can be given to a manager as a managerial remuneration? We already discussed that 11% for total. Okay, anything about 11% require OR. Okay, 5% if there is only 1%. If there are more than 1%, it can be 10%. Okay, anything above 5 or 10 require SR. And the similar case which happens with next one is ordinary director, it will be 1% or 3%. Okay, that's the case. Maybe if it is required more, okay, so you can go ahead with the SR. Okay, now the major discussion comes here is, sir, it's okay, we understood this percentage, we understood what the approval required, we understood how it can be done, we understood the permutation combinations also, sir. But what if there is a loss making company, or what if there is an inadequate profit? Please do understand, the act does not define anything what is called inadequate profit, but you need to understand conceptually that inadequate profit, what exactly inadequate profit is. Now let's take an example. Okay, so we are giving a 7% managerial remuneration to a director, to a managing director, 7% or 5%, whatever you say. Okay, so we are considering 7%. Now let understand, okay, what if our profit is 1 lakh only? So how much amount he will be receiving? 70,000. Yani MD is working for 70,000 per annum. Do you think will he work? Will he work for 70,000? This is what you need to understand about inadequate profits. See, loss तो मैं समझ गया. We have understood the loss clearly. Loss तो कोई भी समझ जाएगा यार, loss हुआ है. लेकिन what about inadequate profit? How we will conclude that inadequate profits है? तो इसीलिए शेड्यूल 5 की यहाँ पर जरूरत आती है. तो शेड्यूल 5 के ऊपर जाने के पहले I just making clear that it is not applicable to private company. यानी this schedule 5 is applicable only to public company. The reason is simple. Why? Because the percentage 11%, 7% category is removed for the private companies. So schedule 5 is nothing applicable to private company. Okay, when we are discussing about schedule 5, please be clear. Okay, schedule 5 का structure आप देख लीजिए, ये पूरा structure है. Sir, what about government company? Okay, if it is a public company, the concept will applicable. Okay, ये point ध्यान रखना. But it is not applicable to which company? Private company. Okay, now let's discuss schedule 5 in detail. But ये सब discussion करना है schedule 5 का. ये पूरा होने के बाद अपना ये portion का major chapter, ये chapter का major crux खत्म हो जाता है. और फिर बचते हैं छोटे-मोटे section which can be discussed easily, not a big deal. ओके, तो शेड्यूल 5 में मैंने आपको क्या बताया था, कितने पार्ट है बेटा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. लेट अंडरस्टैंड क्लियरली. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. वापस आते हैं. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. पार्ट 1 इज अबाउट एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एमडीज. पार्ट 1 इज अबाउट एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एमडीज. व्हेन आई से एमडी तो मतलब एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर. Part 2 is about remuneration for MD and director. Part 2 is about remuneration to MD or MD or WTD or manager. And part 3 is about certain compliances need to be done. First thing, keep in mind, it is not applicable to which company? Private company. Second, it is not applicable to ordinary directors. Yani if the company is a loss making company, nothing will be given to ordinary directors. यानी अगर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है तो ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, भले एसआर पास करो, जो पास करना करो. ओके, वो सर 1% और 3% ओनली इफ द कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट तो वो मिलता है. In case of inadequate profits, no remuneration will be given to ordinary director, but remuneration can be given to MD. और जब मैं MD बोला तो अभी ये पूरा सेक्शन वैसे याद रखना. सर रीजन क्या है? सर ऐसा कैसे लॉस हो रही है और अपन पैसे नहीं? अरे भाई मैंने आपको क्या बोला, इफ यू थ्रो ए पीनट्स यू विल बी गेटिंग ए मंकी. अगर अपने को कोई बंदा तोड़ चाहिए तो भाई अपने को ध्यान रखना होगा, लॉस मेकिंग है डजंट मैटर. अगर आपने कोई सादे सूदे बंदे को रखा ना, वापस लॉस हो जाएगा और एक दिन सिक होकर बंद हो जाएगी कंपनी. अपने को उसमें से मतलब बाहर आना है वो कॉन्सेप्ट से यार. एंड यू आर डूइंग, यू नीड टू गिव सम मनी सो दैट पर्सन विल बी मोटिवेटेड टू वर्क हियर. नहीं तो एमडी कैसे मोटिवेट होगा यार काम करने के लिए? मेरे को ये तो बताओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोटिवेशन? द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द मोटिवेशन इज पैसा. मैं नहीं बोल रहा पैसा ही खाली मोटिवेशन होगा, लेकिन भाई एमडी के लेवल पे तो पैसा ही मोटिवेशन होगा, क्योंकि इसको दूसरी जगह से ऑफर आ सकता है. वो ऑफर छोड़ के तुम्हारे पास बैठा है वो. इस केस में अपने को ध्यान रखना पड़ेगा. तो याद रखना, पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी ओनली.
It is applicable to, it is not applicable to private company. Second, it is applicable only to MD, whole time director and okay managing director, manager. बाकी किसी को ये शेड्यूल 5 एप्लीकेबल नहीं है। यानी यहां पर रेम्युनरेशन की जो भी बात होगी वो किसके लिए होगी? MD, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, बाकी नहीं होगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? फ्रीज करे। ओके, कितने पार्ट दिए? 3 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा है कि अगर ये 4 चीज में नॉन कंप्लायंस, ये 4 चीज को डिस्क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं अपन इसको, डिस्क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन, ये 4 चीज में से कुछ भी प्लस माइनस हुआ, ओके, आप डिस्क्वालिफाइड हो टू बिकम एन एमडी। लेकिन ये अगर सीजी का अप्रूवल आ गया तो ये गो हेड कर सकते हो। यानी अगर ये आगे की जो 4 चीजें मैं बता रहा हूं मालिक, ये आगे की जो 4 चीजें मैं बता रहा हूं मालिक, आगे की जो 4 चीजें बता रहा हूं मालिक, आर यू गेटिंग द पॉइंट? आगे जो 4 चीजें बता रहा हूं, अगर ये आपके साथ घटी हुई घटना है तो आपको याद रखना है सेकंड मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट में जाना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं चलेगा। नहीं समझा? ओके, कितने मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट थे? 2। अगर आपको याद है तो ये 2 थे। याद आया मालिक? तो अगर वो 4 चीजें घटी हुई है आपके साथ तो आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? सेकंड मेथड। आई डू थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट नाउ। तो 2 मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट से सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, वो है पार्ट 1 की सिनारियो। तो पार्ट 1 के सिनारियो में क्या क्या बात की जा रही है? सबसे पहला, अगर आपको इंप्रिजनमेंट हुआ है या आपको फाइन लगा है ग्रेटर देन 1000 रुपीज। क्या बोला मैंने? अगर आपको इंप्रिजनमेंट हुआ है या फाइन लगा है ग्रेटर देन 1000 रुपीज और उसमें आप कन्विक्ट हुए हो, अरेस्ट नहीं हुए हो, क्या हुए? कन्विक्ट। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कन्विक्ट? ओके, अरेस्ट मतलब आपको पकड़ के लेके गए और फिर कोर्ट में केस चला और आपको बरी कर दिया। अब यहां पर कन्विक्ट नहीं हुआ, भले ही अरेस्ट हुआ रहेगा लेकिन कन्विक्ट नहीं हुआ। कन्विक्ट होने के लिए किसने हाँ बोलना चाहिए? कन्विक्ट होना चाहिए कोर्ट ने। कोर्ट या उसकी जुडिशियल अथॉरिटी जो भी रहेगी वो, एग्जांपल ट्रिब्यूनल भी बोल सकता है, क्योंकि ये इट इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट ओनली 1 लॉ, इट इज डिस्कसिंग अबाउट 19 लॉज। 19 लॉज आर कवर्ड हियर। सर 19 लॉज कौन से होंगे? तेरे सारे जितने लॉज है वो लॉज वो सारे के सारे कवर है यहाँ पर। ओके, यानी जो कंपनीज एक्ट हो गया, तेरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, तेरे दूसरे एक्ट हो गए, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, किसी में भी अगर तेरे को इंप्रिजनमेंट मिला होगा या फाइन रुपीज ग्रेटर देन 1000 लगा होगा तो उसके लिए तेरे को यहां पर पार्ट 1 में ओके तू आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम ए डायरेक्टर। यानी अगर तेरे को डायरेक्टर बनना है तो किसका अप्रूवल लगेगा? सीजी का अप्रूवल लगेगा। और याद रखना, वापस एक चीज क्लियर कर दूं, यहां पर डिस्कशन कॉमन आता है, फालतू टाइम पास वाला आता है। सर 1000 रुपया अगर ऐसा मुझे लगा, 800 रुपया लगा और 400 रुपया लगा तो 1200 हो गया, तो ऐसा चलेगा क्या? ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 1000 एक टाइम का, एक कन्विक्शन का 1000 प्लस लगा होगा, समझ में आया? लेकिन इंप्रिजनमेंट एक भी दिन लगा, 1000 रुपया नहीं लगा, आपको 1000 रुपया पेनल्टी नहीं चार्ज की, लेकिन इंप्रिजनमेंट एक भी दिन आया तो आपको किसका अप्रूवल लगेगा? सीजी का लगेगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ओके, वापस पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट समझा क्या मालिक? तो पार्ट 1 का पहला पॉइंट क्या हुआ कि अगर आपको इंप्रिजनमेंट है, एक डे नहीं दिया, इवन 1 डे इंप्रिजनमेंट यू आर गॉन, ओके, और द फाइन इज रुपीज 1000 और मोर, एक मोर देन 1000, ओके, फॉर हाउ मेनी एक्ट? 19 एक्ट्स, जिसके अंदर सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक सारे ऑलमोस्ट आपके सारे लॉस कवर है। इकोनॉमिक लॉ कवर, ये सारे लॉ कवर है, खाली एम्प्लॉय वाले जो लॉ है ना, वर्कमैन, वो सारे कवर नहीं है, लेकिन बाकी सारे लॉस कवर है आपके। तो कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी हो गया, ये सारे लॉस कवर है। अगर उसके उस एक्ट के अंदर तू कन्विक्ट पाया गया, वापस मैं बोल रहा हूं, क्या पाया गया? कन्विक्ट पाया गया, यानी कोर्ट ने बोलना चाहिए तू गुनहगार है। जब तक कोर्ट गुनहगार नहीं बोलेगी तब तक ये एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ओके, इनकम टैक्स एक्ट में तू गिल्टी पाया गया और तुझे 3 महीने की सजा हुई। इनकम टैक्स में तू गिल्टी पाया गया और तुझे 3 महीने की सजा हुई, कैन यू बिकम एन एमडी? 3 महीने की सजा हुई, कैन यू बिकम एन एमडी? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, तो क्या चाहिए? सीजी का अप्रूवल। आप नहीं बोलोगे, आपका आंसर क्या रहेगा? समझा? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है? 3 महीने के ऊपर सजा हुई, ओके, क्या लगेगा? सीजी का अप्रूवल। भेजे में गया मालिक? एवरीबडी ठीक है? आपको कंपनी लॉ में कुछ इश्यूज आए, रिलेटेड पार्टी की ट्रांजेक्शन के कुछ इश्यूज आए, या कुछ भी इश्यूज आए, कंपनी लॉ में कुछ इश्यूज आए और आपको 9 महीने की सजा हुई, ओके, क्या आप एमडी बन सकते हो? कंपनी लॉ या कोई भी लॉ, किसी भी जीएसटी में 9 महीने की सजा हुई, एमडी बन सकते हो? इधर छोड़ दो, इधर गया तेले ने 196(3) में आपने पढ़ा था 6 महीने से ज्यादा सजा हुई, एमडी लाइफ लॉन्ग नहीं बन सकता। तो यहां पर वो डिस्कशन ही मत करो, समझ में आया? यानी अपन को, मेरे को ये बताओ, जो सीजी का पार्ट 1 का अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये टेन्योर क्या होगा इंप्रिजनमेंट का? इधर 0 मंथ से 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर तक हुआ रहेगा ना तो सीजी के अप्रूवल से बन सकते हैं। 6 महीने से ज्यादा हुआ तो सीजी अप्रूव करे या नहीं करे। मैंने आपको क्लियर बोला था, ये डिस्क्वालिफिकेशन कोई निकाल नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है निकालने की, ये क्लियर किया था मैंने, याद आया मालिक? अरे याद आया क्या? तो ये कब एप्लीकेबल होगा, ये समझ में आया? यानी ये कब एप्लीकेबल होगा, समझ में आया? इंप्रिजनमेंट और फाइन ग्रेटर देन 1000 इज ओनली, इंप्रिजनमेंट इज फॉर लेस देन 6 मंथ्स।
Okay, after 6 months you don't consider part 1, you consider 196(3). राइट, फ्रीज करें, ठीक है। सेकंड है कॉफी पोसा एक्ट। कॉफी पोसा एक्ट इज समथिंग लाइक विच इज कॉल्ड कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और प्रोटेक्शन करना फॉरेन एक्सचेंज का। इट इज नथिंग बट मनी लॉन्ड्रिंग जैसा, फॉरेन एक्सचेंज के मनी लॉन्ड्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है। कॉफी पोसा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वो कुछ तो है, ओके, बट कन्वर्जेशन ऑफ कन्वर्जेशन मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो हाँ मैं नाम भूल गया, वो उस कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन मतलब कन्वर्जेशन, फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, मैं नाम भूल गया उसका, वो क्या प्रोनाउंसिएशन में से जम नहीं रहा वो, पर तुम उसको प्रिजर्व करना फॉरेन एक्सचेंज को, और उसका मिसयूज नहीं होना, दैट इज नथिंग बट कॉफी पोसा एक्ट। ओके, इन शॉर्ट इट इज आउटडेटेड, गया है, निकाल चुके हैं, और इसको ओवरलैप कर दिया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ गया इसकी जगह, ये एक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, ये है ही नहीं एक्ट, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कोई गया होगा ना, समझ में आया, इस एक्ट में कोई ना कोई तो गुनेगार पाया गया होगा, वो डिस्कशन यहां पर है। सेकंड में अगर आप कॉफी पोसा एक्ट में गए हो, पकड़े गए हो, तो आप इधर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग फिर किधर गया, ए में गया अभी, समझा, अब ए में, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में तो पकड़ा गया और तेरे को सजा हुई या 1000 के ऊपर हुआ तो ही तू गया है। ओके, कॉफी पोसा में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या था मालूम है क्या, यहां पर अगर तू डिटेन भी हुआ तो भी तू गया, तेरे को सीजी का अप्रूवल चाहिए था। सर व्हाट इज द डिटेन्ड, डिफरेंस बिटवीन डिटेन्ड एंड कन्विक्शन? कन्विक्शन मतलब कोर्ट ने बोला तो ही तू जाएगा, कन्विक्ट होगा। ओके, डिटेन्ड मतलब तेरे को पकड़ लिया, भले कोर्ट ने तुझे छोड़ दिया होगा, लेकिन तू इस सस्पिशियस में गया, डिटेन्ड हो गया ना, कॉफी पोसा में डिटेन्ड हुआ ना, तू डिटेन्ड हुआ ना, यू आर नॉट, अगर तेरे को डायरेक्ट एमडी बनना है तो क्या लगेगा, सीजी का अप्रूवल। वापस बोलो, ये ऐसे मत लिखना इसके बिना सीजी का, इसके बिना एमडी बन नहीं सकते, बन सकते हैं लेकिन क्या चाहिए अभी, सीजी अप्रूवल। यानी ये कौन से रूट में जाएगा, सेकंड रूट, बस दिमाग में ये रखो, ये सेकंड रूट के लिए, अभी फर्स्ट रूट से ये बन ही नहीं सकते, MR1 में बन ही नहीं सकता है, MR2 चाहिए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, डन मालिक, फ्रीज करे। तो सेकंड कौन सा है, कॉफी पोसा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या वर्ड है, ऊपर है कन्विक्शन, नीचे है डिटेन, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में समझ में आ गया। ओके ठीक है, इसमें एक चीज मैं बता दूं, एक प्रोवाइजो डाला है शेड्यूल के अंदर, प्रोवाइजो मतलब शेड्यूल का प्रोवाइजो नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है उसके अंदर। इन लोग ने बोला है कि अगर बाई चांस एक बार कन्विक्शन हुआ और एक बार मैंने सीजी का अप्रूवल ले लिया, एक अप्रूवल सीजी दे देगी, ठीक है, ही इज एलिजिबल टू बिकम एमडी, वही अप्रूवल बार बार लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, देखो फ्रेश कन्विक्शन हुआ रहेगा तो अलग है, लेकिन पुराना कन्विक्शन, एग्जांपल एक बार मैं गया था यार जेल में, ओके, और एक महीने के लिए गया था, और सीजी ने अभी बोल दिया ठीक है तुम सोचो अभी तुम बन सकते हो एमडी, अभी अगली बार कोई और कंपनी में एमडी बन रहा हो, या 5 साल हो गए और उसके बीच में मैं वापस कोई जेल में नहीं गया, मैं ना मुझे 1000 रुपए की पेनल्टी लगी हुई है, समझ में आया, तो मेरा अप्रूवल, वही अप्रूवल जो मिला था ना सीजी का, वही अप्रूवल अपन यूज कर सकते हैं। यानी सीजी बोलती है बार बार वापस वही एक ही अप्रूवल के लिए मत आओ, यानी अप्रूवल वंस गिवन इज वैलिड फॉर लाइफ लॉन्ग अनलेस अंटिल, हाँ। तो अभी अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो कॉफी पोसा का वैसे हो सकता है, क्योंकि कॉफी पोसा आउटडेटेड हो गया है, तो कॉफी पोसा में एक बार तेरे को अप्रूवल मिल गया, सीजी बोलती है हाँ कर लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि कॉफी पोसा है ही नहीं अभी, तो अभी बी में तो वापस फंसेगा ही नहीं। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है, डन, फ्रीज करें। थर्ड वाला कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। थर्ड वाला क्या है, एज लेस देन 21 बन नहीं सकता, ग्रेटर देन 70 बनने के लिए क्या बोला हुआ अपन ने, तो यहां पर इन लोग ने बोला अगर एसआर पास कर लिया तो सीजी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और अगर एसआर नहीं किया है तो सीजी का अप्रूवल ले लो, कंडीशन क्या है, ओआर पास होना चाहिए। तो रूट कौन सा होगा, ये सेकंड रूट, और फर्स्ट का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूट, फर्स्ट का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यानी क्या होगा, ओआर की जगह एसआर, जो मैंने आपको बताया था। तो दो रूट दिमाग में रखो, हाँ भाई तो ऐसा उसमें थोड़ा मॉडिफाइड है या सेकंड में जाएगा, या इधर है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं, एंड चौथा पॉइंट भी मैं आपको एक्चुअली बिफोर द ब्रेक बता चुका हूं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर है, ओके, ही इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, नॉन रेसिडेंट है मतलब रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो अपने को अप्रूवल चाहिए, अगर रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो व्हाट आर द 4 पॉइंट्स हियर, 4 पॉइंट्स क्या क्या है, सबसे पहला इंप्रिजनमेंट और फाइन मोर देन 1000, ओके, फॉर हाउ मेनी एक्ट, 19 एक्ट, बट हियर कन्विक्शन इज देयर। सेकंड पॉइंट, डिटेन्ड अंडर कॉफी पोसा एक्ट, कॉफी पोसा का जो फुल फॉर्म है वो देख लेना बाद में। तीसरा सिनारियो, ओके, एज लेस देन 21 वो बन ही नहीं सकता, एज 21 के लिए ऐसा मत बोलना सीजी का अप्रूवल लेके बन जाएगा, अगर आप बोलते हो सीजी का अप्रूवल लेके बनता है क्योंकि पार्ट 1 में बोला हुआ है, तो पर ऊपर डिस्क्वालीफाइड है, नहीं समझा, नहीं समझ आया क्या, ऊपर डिस्क्वालीफाइड है ना भाई, ऊपर डिस्क्वालीफाइड है, 196(3) में तो बन ही नहीं सकता, समझा। तो सीजी का अप्रूवल कब होगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा सीजी, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा तो एज लेस देन 21 अगर सीजी का अप्रूवल लेके भी बोलते हो आप बना दो, ओके भाई हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से समझ में आ गया, तो ये खत्म हो गया। एंड लास्ट पॉइंट इज, वो बंदा कौन होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर नहीं है तो आपको सीजी का अप्रूवल लगेगा, क्लियर है। ओके, अभी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे माना जाएगा, पिछले साल में मतलब जिस दिन से कैलकुलेशन किया 365 डेज इधर होना चाहिए,
यानी पूरा पिछला साल इधर रहना चाहिए, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया माना जाएगा। ओके, इसमें रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रेसिडेंट डायरेक्टर को मत लेना, याद है ना चैप्टर 1 में, वो ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ओके मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्यों समझा रहा हूँ, ये मैं बाद में क्लियर करूंगा। और यहाँ पर क्या बोला है, रेसिडेंट कौन होगा, जो पिछले पूरे साल में 365 डेज यानी पूरा एक साल इधर रुका होगा। यूजुअली ये किसको कर्व कर रहा है, नॉन रेसिडेंट बाहर से आते हैं ना और इधर एमडी बनते हैं, उनको नहीं चलेगा, समझा। यानी कल अभी एग्जांपल नरेंद्र नॉन रेसिडेंट था अभी तक, ओके, और आज आया, ओके, और आज हमने एमडी बना, नहीं चलेगा। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, पिछला साल 365 डेज जाना चाहिए। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, जब ये शेड्यूल 5 लिखा गया या शेड्यूल 5 ड्राफ्ट किया गया, अभी यहाँ पर वर्डिंग नहीं है ना डायरेक्ट है अपना, इसीलिए अपन को यहाँ पर ऐसे ही समझना पड़ेगा। शेड्यूल 5 ड्राफ्ट किया गया, इन लोग ने बोला रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स, रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स, वापस बोल रहा हूं क्या बोला मैंने, रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड्स द पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर लास्ट 365 डेज। समझ में आया, पर वर्डिंग क्या दी है मैंने, रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूड, इट मींस इट इज मच वाइडर डेफिनेशन। यानी अगर इनकम टैक्स का भी तू रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहा है चल जाएगा। इन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। तो यानी अगर आप उसका लेना चाहते हो ले लो, फेमा का रेसिडेंट इंडिया लेना चाहते हो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड्स बोला है, मतलब जब मैं बोल रहा हूं इंक्लूड, ये इंक्लूड करेंगे इसमें, तो मतलब उसमें ऑलरेडी कुछ होगा ना। तो ये लोग बोलते हैं जिधर जिधर कोई एक्ट के डेफिनेशन से रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रहा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर कोई एक्ट का एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो फिर ये डेफिनेशन देख लो तुम। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, पर उसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, तो मैंने तुमको ज्ञान देने के लिए समझाया, थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल लेना चाहिए तो अच्छा रहता, काम आ जाता है। और वैसे भी काम ही आ रहा है क्योंकि कॉन्सेप्टली आप अभी समझ रहे हो कि कैसे लिंक होगा। तो ये ज्ञानबाजी थी थोड़ी मेरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन नेवरदलेस आपको शेड्यूल 5 का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मेरे को बताओ शेड्यूल 5 का पार्ट 1 का वायलेशन हुआ तो क्या होगा, सीजी का अप्रूवल लगेगा। तो पार्ट 1 के वायलेशन में कितनी चीजें इंक्लूडेड है, 4। ओके, 4 में क्या क्या है, कन्विक्शन, डिटेन्ड, उम्र, एज एंड रेसिडेंट। कन्विक्शन, डिटेन्ड, एज, रेसिडेंट। कन्विक्शन, डिटेन्ड, एज, रेसिडेंट। कन्विक्शन में इंप्रिजनमेंट और 1000 से ज्यादा। ओके, डिटेन्ड कॉफी पोसा खाली, इसमें 19 एक्ट है, 19 एक्ट जो भी एक्ट रहा सब लोग ले लेने का। उसके बाद है एज लेस देन 21 नहीं बन सकता, 70 के ऊपर एसआर और सीजी, ये दोनों क्राइटेरिया इसमें दिए हुए। और लास्ट वाला पॉइंट है नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट रहा तो अपने को क्या लगेगा, सीजी अप्रूवल लगेगा। भारत माता की जय, समझ में आएगा एवरीबॉडी, पक्का क्लियर। पार्ट 1 के लिए सीजी के अप्रूवल चाहिए, पार्ट 2 से सीजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट अगर पार्ट 1 के कोई पर्सन है जिसका अपॉइंटमेंट हो रहा है एमडी के लिए, तो मेरे को पता उसका प्रोसीजर क्या होगा, फर्स्ट या सेकंड वाला, सेकंड वाला। खाली एज के लिए फर्स्ट में थोड़ा मॉडिफाइड हो सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू विच कंपनीज, अदर देन प्राइवेट, पब्लिक कंपनी, बस आपने ध्यान रखना। प्राइवेट कंपनी को नहीं है, बाकी सबको एप्लीकेबल है, सबको एप्लीकेबल, सबको, गवर्नमेंट को भी है ना। मैंने कब बोला शेड्यूल 5 गवर्नमेंट को नहीं है, मैंने खाली बोला शेड्यूल 5 इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट, मैंने क्लियर बोला है। यानी गवर्नमेंट कंपनी का भी डायरेक्टर बनेगा तो ये रहेगा, यानी प्राइवेट कंपनी को खाली किसका कंप्लाई करना है, 196(3). प्राइवेट कंपनी खाली ये देखेगी, समझ में आया, प्राइवेट कंपनी खाली ये देखेगी, लेकिन पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी कोई भी रहो, वो ये गवर्नमेंट कंपनी को भी तो एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट कंपनी रही तो ये प्लस नीचे का पोर्शन, ये 2 देखेगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर, पक्का, एनी डाउट टिल हियर, किसी को दिक्कत नहीं ना। एक सेकंड ना, इसी का थोड़ा सा तो पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर हुआ। तो पार्ट 1 में अपन ने क्या समझा, पार्ट 1 में चीजें समझी कि पार्ट 1 में अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस मतलब ये नहीं रहा तो अपने को किसका अप्रूवल चलेगा, सीजी का अप्रूवल और गो हेड। प्राइवेट कंपनी को ये 5-4 चीजें नहीं देखोगे, लेकिन ऊपर वाली 196(3) प्राइवेट कंपनी को देखोगे आप, ये याद रखना। ओके, वो गवर्नमेंट कंपनी को भी देखोगे, ये गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी सबको देखोगे, ये आपने ध्यान रखना है। अब बढ़ते पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन, पार्ट 2 इज ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन। और रेम्यूनरेशन ठीक है अभी चल रहा है, इसी वो चल रहा है, ऑटो पे गया है शायद, ठीक है देख ले, तो थोड़ा सा कम कर देना स्पीड में। पार्ट 2 इज ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन, पार्ट 2 इज रेम्यूनरेशन। तो अब थोड़ा सा आराम से रटने की कोशिश करना, क्योंकि आंसर लिखते हो कि ये सारे आंसर याद आने चाहिए। पार्ट 2 इज अबाउट रेम्यूनरेशन, जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। कितने सेक्शन में, 5, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं, शेड्यूल 5 कितने पार्ट में डिवाइडेड था, 3। पार्ट 1 में कोई पोर्शन नहीं था, ओके, सेक्शन नहीं था। पार्ट 2 में 5 सेक्शन है और पार्ट 3 में कोई सेक्शन नहीं है। तो पार्ट 2 के कितने सेक्शन है, 5। फॉर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन कैसे देना है उसके लिए कितने सेक्शन है, 5। सेक्शन 1 अगर प्रॉफिट है तो रेम्यूनरेशन कैसे दोगे, सेक्शन 2 लॉस है तो रेम्यूनरेशन क्या देना है, सेक्शन 3 एक्सेप्शनल केसेस, सेक्शन 3 क्या रहेगा, एक्सेप्शनल केसेस, याद रखना। वापस आते हैं, सेक्शन 1 प्रॉफिट रहा तो कितना दोगे, प्रॉफिट रहा तो कितना दोगे, सेक्शन 2 लॉस रहा तो कितना दोगे, सेक्शन 3 एक्सेप्शनल केसेस, सेक्शन 4 रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे।
रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड नहीं करोगे। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो रेम्यूनरेशन में ये इंक्लूड नहीं करना है, लॉस मेकिंग कंपनी है। एंड सेक्शन 5, अगर एक एमडी है जो 2 कंपनी में एमडी रहा तो दोनों का टोटल रेम्यूनरेशन नहीं ले सकता वो, तो क्या ले सकता है सेक्शन 5 बताएगा। तो मुझे चाहिए पार्ट 2 के 5 सेक्शन कौन से। सेक्शन 1 प्रॉफिट, सेक्शन 2 लॉस, सेक्शन 3 एक्सेप्शनल, सेक्शन 4 नॉट टू बी इंक्लूडेड, नॉट टू बी इंक्लूडेड क्या क्या आएगा, नहीं उल्टा ले, नॉट टू बी इंक्लूडेड। एंड सेक्शन 5, अगर 2 कंपनी में एमडी है तो रेम्यूनरेशन मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी। ऐसा नहीं ना अंधाधुंधी कुछ भी ले सकता है, फिर तो मुकेश अंबानी अकेला कितना कमाएगा, तो लिमिट्स दी हुई है। तो सेक्शन 5 को कंट्रोल किया गया है उस तरह से, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो सेक्शन 5 को अपन देखेंगे। तो सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, सेक्शन 1 किसके लिए था बेटा, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बात खत्म, ये अपन पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में सेक्शन 1 बोलता है आपको 197 को ध्यान में रखना है। अब मेरे को बताओ 197 अपन पढ़ चुके हैं ब्रेक के पहले, कौन सा था, 5%, 10%, 11%, बस खत्म। मैं वापस बोल रहा हूं 1 और 3 पे मत जाना, 1 और 3 का डिस्कशन इधर होगा नहीं, वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर एमडी। ओके, 1 और 3 किसके लिए, ऑर्डिनरी डायरेक्टर, दिस इज ओनली फॉर एमडी। तो यहां पर आपने ध्यान रखना कि भाई यहां पर 5 और 10 की बात होगी या 11 मैक्सिमम लिमिट, अगर इसके ऊपर देना तो। पर ये कौन से केस में एप्लीकेबल है, प्रॉफिट मेकिंग। बट सर व्हाट इफ माय प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट और देयर इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। मैंने क्या बोला, माय प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट और देयर इज ए लॉस मेकिंग कंपनी। अब सर हाउ टू डिफाइन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट, ये कैसे मैं डिफाइन करूं सर। तो इस पे अभी ज्यादा हेडेक मत करो, बस मैं आपको इतना समझा दिया। मेरे को बताओ 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ इस साल का, तो क्या 1 लाख रुपए का 7% लेके जाएगा वो, खाली 7,000 लेके जाएगा वो गाली देगा, वो अगली बार नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट ऐसा हो गया। तो सर इनएडिक्वेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे कि एडिक्वेट प्रॉफिट क्या है। तो इन लोग ने एक टर्मिनोलॉजी यूज की है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कैपिटल। क्या यूज किया है, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का डेफिनेशन मैं आज नहीं कवर करूंगा, वो एक पर्टिकुलर चैप्टर में और एक टाइम पे, उस टाइम पे मैं लिंक करूंगा। लेकिन आप ये समझो, इसको अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल क्या होगा, इन शॉर्ट नेटवर्क जैसा पकड़ लो, मैं बाद में लूंगा उसमें क्या इंक्लूड करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो एक साथ में मेरे को 2-3 चीजें समझानी है। तो एक ही डेफिनेशन अगर सब जगह एप्लीकेबल होता है तो क्या के लिए हेडेक करने का। तो अभी आप इतना याद रखो, इधर इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन कौन सी कंपनी है, लॉस मेकिंग और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। कुछ समझ में आया। देखो इनएडिक्वेट प्रॉफिट को डिफाइन करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, तो वो चैलेंजिंग टास्क कैसा है, इसमें से कैलकुलेशन करो। लेकिन अगर ये कैलकुलेशन के बेसिस पे काम खत्म होता है तो गो ओवर। तो इसके इन लोग ने क्या बोला, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो आपका जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो क्या बेसिस पे मिलेगा, इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल के 4 स्लैब दिए रहे आपको स्क्रीन पे रहे, 4 स्लैब्स कौन से देख लीजिए। या तो इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है। क्या बोला मैंने, इफेक्टिव कैपिटल क्या है, नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है। इफेक्टिव कैपिटल क्या है, नेगेटिव या लेस देन 5 करोड़। अब जब अपन बोलते हैं ना इनएडिक्वेट सैलरी है, इनएडिक्वेट मिला, इनएडिक्वेट मैंने क्या बोला, लॉस मेकिंग और इनएडिक्वेट, तब ये कैलकुलेशन करेंगे कि इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। अगर है तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, फिर अपने को मिनिमम जो रेम्यूनरेशन आएगा वो देंगे। तो पहला कैलकुलेशन क्या होगा, इधर मेरे को बताओ क्या बेस क्या लेंगे अपन, इधर इफेक्टिव कैपिटल। ओके, मेरे को बताओ पहला स्लैब क्या है, लेस नेगेटिव और लेस देन 5 करोड़। दूसरा स्लैब 5 करोड़ और 100 करोड़ से कम, 5 करोड़ से ज्यादा, 100 करोड़ से कम। उसके बाद 100 करोड़ से ज्यादा, 250 करोड़ से कम और 250 करोड़ से ज्यादा। मुझे बताइए इफेक्टिव कैपिटल के 4 स्लैब कौन से, नेगेटिव 5 करोड़, 5 से 100, 100 से 250, 250 से ज्यादा। अब यहां पर क्या डिस्कस किया जा रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम, इसकी लिमिट डिफाइन की जा रही है। तो एक्ट ने जब डिफाइन किया, एक्ट ने बोला ओके अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो आप जो रेम्यूनरेशन देना चाहते हो वो 60 लाख तक दे सकते हो। कब, अगर 5 करोड़ या उससे नीचे है आपका इफेक्टिव कैपिटल। 60 लाख क्या बोला, पर एनम 60 लाख तक दे सकते हो एज पर शेड्यूल 5। वापस मैं बोल रहा हूं, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भाई अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो मैनेजरल रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाएगा, ओके और आपको आंसर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके लॉस मेकिंग कंपनी है तो मैनेजरल रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाएगा और ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को क्या मिलेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑर्डिनरी डायरेक्टर को कुछ नहीं मिलेगा, मैनेजरल रेम्यूनरेशन शेड्यूल 5 सेक्शन 2 पार्ट 2 और उसका सेक्शन 2 से कवर किया जाएगा मेरे ख्याल से फ्रीज। और सेक्शन 2 में बोला गया है कि यहां पर रेम्यूनरेशन जो कैलकुलेट किया जाएगा वो किसके हिसाब से किया जाएगा, इफेक्टिव कैपिटल। तो अगर इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ या उससे नीचे है या नेगेटिव में, नेगेटिव भी बोला हुआ है, नेगेटिव में भी है, नेगेटिव कुछ भी होने दो, नेगेटिव में है तो आप 60 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो पर एनम, पर मंथ नहीं। तो पर मंथ इसका कितना हो गया, 5 लाख। ओके अगर 5 करोड़ या 100 करोड़ के बीच में है, ओके सेकंड स्लैब में, तो आप यहां पर ये विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओके 7 लाख पर एनम विड्रॉ कर सकते हो, यानी टोटल होगा 84 लाख। 7 लाख पर मंथ 84 लाख, ठीक है। 100 करोड़ से ज्यादा है और 250 करोड़ से कम है तो यहां पर 120 लाख पर एनम, यानी कितना, ओके 1 करोड़ 20 लाख।
1 करोड़ 20 लाख, और अगर 250 करोड़ से ज्यादा है इफेक्टिव कैपिटल, तो आप 1 करोड़ 20 लाख जो विड्रॉ कर रहे हो वो विड्रॉ करो प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। ओके, तो एक बार मैं लिमिट लिख लेता हूं, तो रेड में लिख रहा हूं, तो रेड में ध्यान रख लीजिए। पहला बताओ कितना होगा मेरे ख्याल से 60 लाख, और अगर इसको डिवाइड करूं 5 लाख, ये समझा क्या? ये पर एनम, ये पर मंथ। उसके बाद क्या है 84 लाख 7 लाख, उसके बाद 120 लाख 10 लाख 12 लाख नहीं रे 10 लाख जंपो। ओके, और इसके बाद क्या होगा 120 लाख प्लस 0.001 ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 CR। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ये कैलकुलेशन, यानी मेरे को बताओ अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा हमें अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा? इफेक्टिव कैपिटल। मेरे ख्याल से क्लियर? तो इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बेसिस पे अपन रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। तो कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं अपन? मेरे को बताओ लिमिट फटाफट बताओ। 100 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, 250 से ज्यादा, 60, 84, 120 और 120 प्लस 0.01। क्लियर? ओके, ये अपन रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन है रेम्यूनरेशन देने के लिए, ये रेम्यूनरेशन देने के लिए कंडीशन है। ओके, मैं वापस बात कर रहा हूँ। ओके, मैं कौन से इसमें हूँ? देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। मैं कौन से इसमें हूँ? शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 5 के कौन से पार्ट में? सेकंड। उसका कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2। और सेक्शन 2 में 2 लिमिट दी गई है, लिमिट ए, लिमिट बी। ये है लिमिट ए। तो लिमिट बी क्या दी गई है? लिमिट बी आपको कंडीशन दी गई है ताकि लिमिट ए के पैसे उतने दे सको। आप ऐसा मन किया तो ये पैसे किसी को भी नहीं दे सकते, प्रमोटर को नहीं दे सकते आप। ये आपके लिए प्रॉब्लम है, पर कंडीशन से, कंडीशंस कुछ समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से? कंडीशन से एमडी को दे रहे हैं, लेकिन प्रमोटर कैन बी एमडी ऑल्सो। तो जो बंदा होना चाहिए वो एमडी, जो एमडी होगा वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। कंडीशन वो किस में लिखा है? लिमिट बी में। यानी वो बोलता है कि लिमिट ए का जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया, अगर आप वो देना चाहते हो तो लिमिट बी की कंडीशन फॉलो करो, और लिमिट ए और लिमिट बी दोनों कंप्लाई हो रहे हैं तो अदर कंडीशन भी दे रहे हैं, वो भी फॉलो करो। कुछ समझ में आया? तो सेक्शन 2 पूरा ध्यान में आना चाहिए। सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 कितने पार्ट में डिवाइड होगा? और फर्दर 3। सेक्शन 2 फर्दर 3 में जा रहा है। सेक्शन 2 बोल रहा हूं, शेड्यूल 5 पार्ट 2, उसका सेक्शन 2, और उसमें 3 पार्ट। लिमिट ए हो गया डिस्कस्ड, लिमिट बी कंडीशन फॉर लिमिट ए, एंड ये दोनों कंप्लाई हुए तो अदर कंडीशंस। कुछ समझ में आया एवरीबॉडी? ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखो। ओके, लिमिट ए समझ में आई? लिमिट ए सबको देखो, स्क्रीन पे लिखा है लिमिट ए। किधर लिखा है लिमिट ए? दिखा गया लिमिट ए। लिमिट ए कितना दे सकते हैं अपन? 60, 84, 120 प्लस 1.01। ये क्लियर है? लेकिन जब ये पैसा दोगे तो आपको ओआर पास करना पड़ता है। क्या पास करना पड़ता है? ओआर। बिना ओआर पास किए ये पैसा नहीं दे सकते। ओके, सेम लॉजिक 11% के ऊपर चाहिए तो ओआर, पर यहां पर प्रॉब्लम ये कि लॉस है, इसलिए वो तो एक्स्ट्रा ही जा रहा है ना, इसलिए ओआर चाहिए। वो एसआर के कॉन्सेप्ट में मत जाना, ये ओआर के कॉन्सेप्ट में जाता है। तो ये लोग ने बोला ओआर है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? तो वापस है, मेरे को ये लिमिट्स के ऊपर जाना है तो क्या चाहिए मेरे को? ओआर चाहिए, ओआर चाहिए। लेकिन सर क्या मैं इसके ऊपर पैसा दे सकता हूं? मेरा क्वेश्चन और क्या आएगा, क्या ये लिमिट के ऊपर भी जा सकता हूं मैं? कैन आई गो विद दिस वो लिमिट ऑल्सो? हाँ या ना? हाँ या ना? यानी एग्जाम्पल, ओके मेरा इफेक्टिव कैपिटल सपोज 4 करोड़ है, तो मेरे को बताओ मेरी लिमिट कितनी है? मेरा इफेक्टिव कैपिटल 4 करोड़ है, लिमिट कितनी है? 60। लेकिन डायरेक्टर एकदम भारी डायरेक्टर है और मैं 90 लाख देना चाहता हूं, दे सकता हूं क्या? एसआर। यानी ये सेक्शन की लिमिट है इसलिए ओआर है, सेक्शन की लिमिट की वजह से। ओआर तो एक कंप्लायंस है, लेकिन अगर आपको मालूम है 5% और 10% के ऊपर देना रहा तो क्या लगता था? एसआर। तो इसीलिए इस लिमिट के ऊपर जाना रहा तो मुझे क्या लगेगा? एसआर लगेगा। आई डू थिंक समझ में आया मालिक? समझ में आया? अब लिमिट ए को ध्यान में रखते हुए, यानी लिमिट ए के जो अमाउंट दिए ये देने के लिए ओआर चाहिए, इसके ऊपर देने के लिए एसआर चाहिए, लेकिन ये देने के लिए लिमिट बी ध्यान में रखना पड़ेगा। और लिमिट बी एकदम क्लियर है, ये बंदा प्रोफेशनल होना चाहिए। ये बंदा कौन होना चाहिए? प्रोफेशनल। यानी उसको जो, अरे ही शुड बी कैपेबल। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए भाई यार ऑर्गेनाइजेशन का प्यून है और उसको बिठा दिया और तुम दे रहे हो लिमिट। उसका जो काम करने का तरीका है प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला, यानी तुमको समझ में आ रहा है वो प्रोफेशनल बंदा है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है वो। दूसरा सिनारियो, उसका कोई इंटरेस्ट कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, डायरेक्टर, प्रमोटर के साथ नहीं होना चाहिए। यानी इंटरेस्ट मतलब क्या? देखो कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी में तो इंटरेस्ट मतलब समझ गए आप, क्या समझ गए? इन्वेस्टमेंट्स। ओके, और डायरेक्टर और प्रमोटर मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए।
सर ये जो इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कितने साल पुराना नहीं होना चाहिए? 2 साल। 2 साल का कूलिंग पीरियड है, यानी आप कितना इंटरेस्ट देखोगे? पिछले 2 साल का। कंपनी फॉर्म हुई तब से नहीं। अगर मिस्टर अमित को ओके एमडी बना रहे हैं और लॉस मेकिंग कंपनी है, कौन सी कंपनी है? लॉस मेकिंग, तो अमित को जब मिनिमम सैलरी डिसाइड करोगे, मिनिमम अमाउंट डिसाइड करोगे, रेम्युनरेशन डिसाइड करोगे, तो अमित का पिछले 2 साल का देखो। 2 साल में अमित क्या ये कंपनी से रिलेटेड था? क्या इनकी होल्डिंग से रिलेटेड था? क्या इनकी सब्सिडी से रिलेटेड था? नहीं। क्या ये डायरेक्टर से रिलेटेड था? नहीं। क्या ये प्रमोटर से रिलेटेड था? नहीं। ओके, तो ठीक है, ओके ओके, गो हेड। मेरे को समझ में आया? यानी कितने साल का मेरा इंटरेस्ट देखने का है? 2 साल। 2+1 करंट जो जिसमें अपॉइंटमेंट होगा, इट्स नथिंग बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जैसा 2+1 वाला कॉन्सेप्ट है वो। जिस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टू फाइनेंशियल ईयर आपको देखना है, मेरे ख्याल से क्लियर। तो हाँ, मतलब अगर अपने कॉन्सेप्ट से जाओ तो 2+1 3 हो जाएगा, ऐसा देखा जाए, पर 3 को मत लिखना। हाँ, क्योंकि वो मतलब इट मे हैपन इन दैट फाइनेंशियल ईयर और समथिंग लाइक दैट, ऐसा व्हाटएवर डिसाइड होगा। ये होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यार सर ऐसा हो सकता है कोई कंपनी बोले अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो आपको मिनिमम शेयर्स लेने होते हैं, मालूम है? डायरेक्टर सब्सक्रिप्शन मिनिमम शेयर आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां पर 0.5% एग्जाम किया हुआ है, यानी ये जो बंदा है वो कितने तक होल्ड कर सकता है? 0.5% शेयर ही कैन होल्ड इन दैट कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडरी। मतलब उसका टोटल इंटरेस्ट जो होना चाहिए वो कितना हो सकता है? टोटल इंटरेस्ट 0.5%। यूजुअली ये कंपनी का डिस्कशन आता है। ओके, होल्डिंग एंड सब्सिडी हम डीम्ड करते हैं क्योंकि शेड्यूल कुछ नहीं बताता, तो शेड्यूल साइलेंट है उस पर, तो केस लॉ हुआ नहीं है, तो इसलिए अपन डीम्ड ले रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किस में इंटरेस्ट नहीं होने को बोला? ऊपर वाले में नाम दिया है, तो एक्सक्लूसिवली उन्होंने बोला कि इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब ये एग्जाम कर रहे हैं तो यूजुअली अभी ऐसे इंटरप्रिटेशन 2 इंटरप्रिटेशन जाता है। अब मॉड्यूल के इसमें इसका जिक्र ऐसा किया हुआ कि कंपनी और होल्डिंग, पर मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन है ये, अभी मेरे हिसाब से ये कंपनी में नहीं होना चाहिए। मेरे को बताओ एमडी किस में बनने वाला है? तो मेनली उसका इंटरेस्ट किस में होना चाहिए? कंपनी में, यानी शेयर क्वालिफिकेशन शेयर बोलते हैं ना, मालूम है ना? आर्टिकल्स लिखता है मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स आपके पास 100 शेयर होने चाहिए तो ही डायरेक्टर बन पाओगे। तो किस में होना चाहिए? कंपनी का होना चाहिए। वो होल्डिंग सब्सिडी में थोड़ा बोलेगा क्वालिफिकेशन शेयर। आई डू थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो इसीलिए मेरा ये पॉइंट है कि ये वाले पॉइंट में मैं पर रेड कर रहा हूं, तो इस पे अभी तक ये आप देखो कैसे क्या है। मेरे हिसाब से जो शेड्यूल 5 का पॉइंट है इट इज फॉर कंपनी, ठीक है? तो लिमिट भी फटाफट बताओ, लिमिट भी क्या है? समझ में आया क्या कुछ? लिमिट ए ने एक अमाउंट बताई, लिमिट ए ने पैसा बताया, लिमिट बी ने बोला ऊपर वाला जो पैसा तब मिलेगा जब ये 4 कंडीशन फॉलो करेगा। 4 कंडीशन, तेरे को जो पैसा मिल रहा है प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिल रहा है, ठीक है? दूसरा, ओके तू किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा, ओके तेरा पिछले साल 2 साल का देखा जाएगा। और चौथा, तेरे को जो एग्जाम्प्ट है वो खाली 0.5% शेयर एग्जाम्प्ट है इन कंपनी जिसमें तू बनने जा रहा है। मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक? पक्का? ओके, अब मेरे को बताओ ये चारों कंप्लाई है तो क्या वो एमडी जो बनने जा रहा है जिसमें अगर अपनी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, क्या उसको मैं पैसा दे सकता हूं? ये ऊपर जो डिफाइन किया, आंसर इज यस। लेकिन अभी कंडीशन बाकी है। यहां पर मैंने आपको बताया था ये होने के बाद, ये दोनों होने के बाद आपको लिमिट ए लिमिट बी दोनों होने के बाद आपको ये 4 कंप्लाई करने पड़ेंगे। दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? समझ में आया? ओके, और 4 क्या है? ओके 4 एकदम कोई एक्सेप्शनल नहीं है रे, कॉमन पॉइंट है। बोर्ड, अगर एनआरसी है तो एनआरसी नहीं है तो बोर्ड, उन्होंने अप्रूव करना चाहिए। अरे कॉमन है ना यार, पैसा मीटिंग में नहीं होगा, पहले बोर्ड अप्रूव करेगा तब जाएगा। नहीं समझा? दूसरा, प्रायर अप्रूवल ऑफ, मैंने आपको रटने को बोला था ब्रेक के पहले। प्रायर अप्रूवल 4 नाम दो, पीएफआई, बैंक, डिबेंचर एंड सिक्योरिटी क्रेडिटर्स। डिफॉल्ट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉस मेकिंग कंपनी है ना, तुमको करना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा, उनसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम एमडी को इतना पैसा दे रहे हैं। नहीं समझ में आया एवरीबॉडी? ओके, तो तीसरा सिनारियो ओआर या एसआर। अब मेरे को बताओ ओआर और एसआर कैसे होगा? ओआर और एसआर, अगर लिमिट ये जो रेड कलर में लिखा है वो लिमिट में गया तो ओआर, उसके ऊपर गया तो एसआर, एज द केस में भी। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? और जो जनरल मीटिंग की नोटिस दी जाएगी उसके अंदर क्लियर मेंशन होना चाहिए कितना अमाउंट अपन देने की सोच रहे हैं। तो ये नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग शुड स्पेसिफाई द अमाउंट व्हाट शुड बी गिवन टू मैनेजर रेम्युनरेशन। समझ में आया? तो आप समझो सेक्शन 2 को, समझा क्या? सेक्शन 2 क्या बोलता है? लिमिट ए लिमिट बी अदर कंडीशन, लिमिट ए लिमिट बी अदर कंडीशन। आंसर लिखने का तरीका। अब मेरे को बताओ अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो अपन रेम्युनरेशन क्या बेसिस पे देंगे? ऐसा नहीं बोलोगे। इफ इट इज लॉस मेकिंग कंपनी, अगर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो सेक्शन 197। अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तो द अमाउंट एज ए रेम्युनरेशन कैन बी गिवन एज पर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 का भी कौन सा पार्ट? पार्ट टू, पहले पार्ट बोलो, पार्ट टू के बाद सेक्शन 2, एंड सेक्शन 2 विल बी हैविंग टोटल 3 2 लिमिट्स एंड कंडीशन, लिमिट ए लिमिट बी एंड अदर कंडीशन। लिमिट ए तेरे को 4 नाम बता दिए, ओके 5 करोड़, 100 करोड़, 250 करोड़, 250 से ज़्यादा। उसके बाद लिमिट बी ने बोला कि ये ऊपर का देने के लिए प्रोफेशनल कैपेसिटी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए, 2 साल का नहीं चाहिए और 0.5% रख सकता है। और ये करने के लिए बोर्ड ने या एनआरसी ने हाँ बोलना चाहिए। ओके, दूसरा सिनारियो पीएफआई और बैंक और उनके अप्रूवल चाहिए। तीसरा ओआर या एसआर चाहिए। और चौथा नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में स्पेसिफाई होना चाहिए कितना अमाउंट देने वाले हैं। खत्म। क्या है?
बस अभी अपना कैलकुलेशन किस में जाएगा, इफेक्टिव कैपिटल। तो इफेक्टिव कैपिटल अपन डिस्कशन में नहीं डाला है, लेकिन हाँ मेरा मेन पॉइंट क्या होता है, बहुत बार होता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स मतलब क्या, अभी समझ में आया इनएडिक्वेट प्रॉफिट। अगर पीएनए बैलेंस शीट आफ्टर 198 लगाता हो तो 1 लाख रुपया आता है या 2 लाख रुपया आता है, 10 लाख भी आता है, चलो 10 लाख ले लो। ओके 10 लाख लेने के बाद ओके जो आदमी को 5% दे रहे हो, आपको लगता है वो 5% के लिए काम करेगा? ओके आपके हिसाब से क्या लगता है एमडी की सैलरी कितनी होनी चाहिए एवरेज पे? अगर आप इस लिमिट को देखते हो, लॉस मेकिंग कंपनी में ये लेवल है, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में क्या होना चाहिए यार? I do think you're getting what perception, and I'm not discussing about private company, small company. I'm discussing about a public company. So imagine the scenario which they want the expectation from the MD. The expectation from MD क्या लेवल का होगा expectation? और ये चीज में कहा हुआ है मेरे ख्याल से मालिक, क्लियर? ठीक है, अभी छोटा सा क्वेश्चन मेरे से आता है आपसे, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, ये रट गया। लिमिट ए, लिमिट बी और अदर कंडीशन जैसे पढ़ा है सेम। नहीं 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 नहीं, पहले लिमिट ए कैलकुलेट करो, पहले अमाउंट कैलकुलेट करो, कितना दे सकते हैं, इतना दे सकते हैं या इससे ज़्यादा देना है, इतना दे सकते हैं तो ओआर चाहिए रहेगा, इससे ज़्यादा देना है एसआर चाहिए। फिर लिमिट बी देखो, लिमिट बी नहीं फॉलो हो रही है तो कुछ भी नहीं दे सकते, आगे जाओ ही मत। लिमिट बी हो रही है तो फिर तो देखा जाए तो फिर अदर कंडीशन पहले आनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा ना। सी उनका कंडीशन का एक लॉजिक है, सबसे पहले अमाउंट बोलो, अमाउंट के बाद वो बंदा बताओ, ओके, और बंदे के बाद फिर दूसरी कंडीशन बताओ, और दूसरी कंडीशन के बाद ठीक है गो हेड। आपका आंसर लिखने का तरीका जैसा बेयर एक्ट ने लिखा है वैसे ही रखो तो आपके लिए फायदा होगा, मेरे ख्याल से क्लियर। ओके ये होने के बाद अपना अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, अगला कॉन्सेप्ट आता है, एक क्वेश्चन आता है, मतलब मेरे से आप इमेजिन करो, मेरे को बताओ अगर कल मैं नई कंपनी फॉर्म करता हूं तो पहले दिन से प्रॉफिट चालू होता है क्या, या पहले साल 2 3 साल आपको लगता है इमीडिएटली तोड़ प्रॉफिट चालू हो जाएगा? व्हाट इफ इन दैट केस सिनेरियो, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, मैं पब्लिक कंपनी हूं, एक एक्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, मैं उसका एमडी हूं और दूसरे तीसरे साल में हूं और वो लॉस मेकिंग है, ओके उसमें आप इतना, अब मेरे को बताओ अगर कोई कंपनी खोलते हैं अपन, आज कंपनी खोलता हूँ मैं, कुछ समझने को शुरू हो, कंपनी खोलता हूँ तो मैं प्रमोटर तो मैं ही रहूंगा ना, प्रमोटर जो है वही एमडी रहता है ना यूजुअली, पब्लिक का फेथ आने तक तो प्रमोटर ही एमडी रहता है, नहीं समझा गया? मेरे को बताओ इनिशियली कोई भी पब्लिक कंपनी खुलती है तो एमडी कौन बनता है? अगर कल मैं अमित आतेड़ A80 लिमिटेड खुलता है, अमित आतेड़, मेरे को बताओ तुम पब्लिक हो, तुम पैसा कब लगाओगे, जब वो चलाएगा कौन? 80, तुम्हारा फेथ किस पे है? 80 पे है। प्रमोटर मतलब कौन? प्रमोटर 80 है ना, तो अगर 80 उधर नहीं रहा एमडी के या बोर्ड पे, डोंट यू थिंक आपको तो दिक्कत होगी? मुकेश भाई अंबानी जब स्टार्ट किया तो मुकेश भाई अंबानी या धीरू भाई अंबानी रहे ना, तब जाके फेथ आया ना तुम्हारा, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? तो मैं बोल रहा हूं ओके 80 कंपनी खोली मैंने, ओके 2 साल हुआ, मैं ही प्रमोटर हूं, समझा? अब मेरा क्वेश्चन है क्या एमडी है मैं पैसे विड्रॉ कर सकता हूं? क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है, मैं क्यों नहीं विड्रॉ कर पाऊंगा? मैं प्रमोटर हूं, क्यों नहीं विड्रॉ कर पाऊंगा? क्योंकि लिमिट भी रोक रहा है मुझे, लिमिट भी रोक रहा है। लिमिट भी में क्या बोला, मेरा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, जबकि मेरा तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, मैं प्रमोटर हूं इस कंपनी का। तो अब मेरे को बताओ क्या मेरे को तो कुछ 1 रुपये भी नहीं मिलेगा, तो क्या मैं काम करूंगा? इससे अच्छा तो मैं किसी और कंपनी में नौकरी करूं जिधर मैं करोड़ों कमा सकता हूं। नहीं समझा? नहीं समझ में आ रहा है कि मालिक मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कल कोई कंपनी प्रमोट करता हूं, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा मंगाता हूं और मैं प्रमोट करता हूं, मैं प्रमोटर हूं और मेरे को ही बोर्ड पे रहना पड़ेगा, तब जाके आपका फेथ आएगा मुझ पर, और मैं इस कंपनी का, क्योंकि विजन एंड मिशन तो मेरे को मालूम है, पब्लिक ने तो खाली पैसा लगाया है, कंपनी किधर जानी चाहिए वो तो मेरा ही पॉइंट रहेगा। तो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोच के बताओ, अगर मैं प्रमोटर बनता हूं और लॉस मेकिंग कंपनी है वो, क्योंकि अरे 1 2 साल में 4 साल 5 साल तक लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं होता है कंपनी को, तुम क्या 1 साल की बात कर रहे हो? 5 साल नहीं कंपनी कमाती है, 5 6 साल के बाद कंपनी कमाना चालू करती है। इस केस में अगर मैं प्रमोटर बना तो मेरे को तो आप इस पॉइंट के हिसाब से तो पैसे ही नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे? आपने बोला नहीं भाई इंटरेस्ट है तुम्हारा, तो मैं छोड़ के चला बाय बाय, मैं किसी और कंपनी में नौकरी करता, ये कंपनी का तो दिवाली निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे आई डू थिंक समझ में आया? इसीलिए प्रोवाइजो नहीं, इसीलिए सेक्शन 3 आया, एक्सेप्शनल केसेस में ये चीजें जो अपन ने सेक्शन 2 में पढ़ा ना उसको भूल जाओ। नहीं समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 3 आने का कारण समझा क्या? क्योंकि सेक्शन 2 कुछ जगह नहीं आएगा, बहुत रिजिड रह जाएगा उस केस में, जिसमें से एक आंसर आपके पास हो गया, अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और 7 साल नहीं हुए अभी तक, समझ में आया? तो सेक्शन 3 बोलता है अगर कोई कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और कितने साल नहीं हुए, जो अमाउंट देना है दे दो, ओके लिमिट सेक्शन 2 को फॉलो मत करो, ये मत कैलकुलेट करो। ये कैलकुलेट कब करना होगा? इन शॉर्ट 7 साल के बाद, समझ में आया? तो इस तरह से सेक्शन 3 पिक्चर में आ रहा है। मेरे ख्याल से सेक्शन 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो सेक्शन 3 में देख लो, पहला पॉइंट एक बार के लिए छोड़ दो, एक बार के लिए पहला पॉइंट छोड़ दो, अदर कंपनीज पेइंग वो छोड़ दो,
पहला पॉइंट छोड़ दो। ओके, दूसरा पॉइंट देते हैं। सेक्शन 3 क्या था, कौन से केसेस थे, मैंने क्या नाम बताया, एक्सेप्शनल केसेस। कैसे याद रखोगे, एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल मतलब ये 5 चीजों में सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 5 चीजों में सेक्शन 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें जो देना चाहते दो, ORN वो मेथड पे फॉलो करेंगे अपन, लेकिन जो देना है दे सकते हो आप। नहीं समझा, समझा? ओके, तो उसमें से सेकंड पॉइंट क्या था जो हमने डिस्कस कर लिया, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और कितने साल नहीं हुआ अभी तक, तो जो प्रमोटर को पैसा, क्योंकि प्रमोटर को पैसा देना ही पड़ेगा, तो प्रमोटर रिटेन होगा, तो प्रमोटर को 7 साल तक दो, 7 साल बीत गए उसके बाद आप वो सेक्शन 2 में जाओ। फिर अगर लॉस मेकिंग है तो, अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो कोई डिस्कशन ही नहीं करना, फिर तो अपना 11%, 5% और 10%, 197 में जाओ। मालिक समझा? ये कब एप्लीकेबल हो रहा है, जब लॉस मेकिंग है रे। उसके बाद वाला सिक इंडस्ट्री है, अगर सिक ऑर्डर पास हुआ है तो 5 साल तक जो अमाउंट देना चाहते हो दो, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर इस कंपनी को बता दिया कि सिक यूनिट है, सिक यूनिट मतलब जिसकी नेटवर्थ की लग गई है, अगर नेटवर्थ की लग गई है उस केस में आपको जो अमाउंट देना है दो। मेरे को बताओ ऐसा क्यों किया हुआ है 5 साल तक? 5 साल तक क्यों? क्योंकि रिवाइव करना है उसको। अरे यार, अगर मेरे को बताओ उधर कोई एमडी को, ऐसे एमडी को लगाया जिसको खाली बेयर मिनिमम मिल रहा होगा, वो काम ही नहीं करेगा, जाने देना, डूबे की कंपनी डूबने दो। लेकिन जिसको पैसा दिया जा रहा है, डोंट यू थिंक ही विल वर्क हार्ड? वहां पर मेरे को बताओ, तुमको ऑप्शन मिल रहा है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और एक सिक कंपनी, एमडी बनने का, किस में जाओगे? हाँ, तो सिक में क्यों जाओगे फिर? बस पॉइंट समझ में आ रहा है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो सिक यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीएलटी ने रेम्यूनरेशन डिसाइड किया। सर ऐसे एनसीएलटी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकती है? आंसर इज यस। ओके, मैंने आपको ये बताया था, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में ऐसा हो सकता है, कंपनी का एमडी वो निकाला जा सकता है और ट्रिब्यूनल का जो बंदा है वो एमडी अपॉइंट करेगा, उसका जो रेम्यूनरेशन होगा एनसीएलटी डिसाइड करेगी। मैं तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का एक एग्जांपल दिया है, इसके अलावा भी इंसॉल्वेंसी एंड अदर थिंग्स में आते हैं। आई थिंक समझ में आ रहा है मालिक? और इसके अलावा सीआईआर प्रोसेस, ओके, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में आईबीसी एक्ट, आईबीसी कोड जब पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे सीआईआर प्रोसेस जब जाता रहा, सीआईआर प्रोसेस जब जाता रहा, जब सीआईआर प्रोसेस अपन कर रहे हैं, ओके, उस टाइम तक जब तक सीआईआर प्रोसेस है वो वहां पर अपन टेन्योर देखेंगे, ओके, उस टाइम तक आप जो बंदा होगा उसको आपको जो अमाउंट देनी है दो। तो यहाँ पर सीआर प्रोसेस, जिस कंपनी का क्या चल रहा है, सीआर प्रोसेस, तो चार तो आराम से याद रखे। क्या क्या है मेरे को बताओ? न्यू कंपनी 7 ईयर्स, सिक यूनिट 5 ईयर्स, ओके, उसके बाद है एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया है, और उसके बाद है सीआईआर प्रोसेस जिसका है, तो उसमें लिमिट, यानी इस केस में क्या पढ़ा, क्या समझा आपको, मेरे को ये बताओ। सेक्शन 3 से क्या समझा? सेक्शन 2 अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी सेक्शन 2 का अगर आप देखोगे लिमिट्स एंड अदर थिंग्स ना अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब खाली इसमें बचा पहला पॉइंट, अदर कंपनीज पेइंग। इसको एग्जांपल वाइज समझ लो एंड इसमें दिमाग फोड़ी मत करना, मतलब इसमें वापस मैं बोल रहा हूँ, क्यों हो रहा है ये मत पूछो, कैसे हो रहा है ये समझो। we are interested in procedure rather than reason. Okay, the company is accustomed to act. मैंने क्या बताया? एक्ट कर रही है ना, बस खत्म। क्यों कर रही है क्वेश्चन नहीं आता, तो इधर डिस्कशन मत करो। हाँ, मैं आपको ओफू दे दूंगा क्यों कर रही है, लेकिन आपने ध्यान में रखना है ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी देख लो, ये एग्जांपल समझ लो, ये कौन से के लिए? अदर कंपनीज पेइंग के लिए समझो एग्जांपल का। ओके, एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है, ठीक है। वाई लिमिटेड इज लॉस मेकिंग कंपनी, ओके, और इसमें मिस्टर बी एमडी है और एक्स लिमिटेड में मिस्टर ए एमडी है। ओके, अब यहां पर ये लोग क्या बोलते हैं, यहां का सेक्शन 3 का पहला एग्जांपल, सेक्शन 3 का पहला एग्जांपल, यहां पर एक्स लिमिटेड इज पेइंग मनी टू मिस्टर बी ऑन बिहाफ ऑफ वाई लिमिटेड। ओके, वाई की जगह पैसा कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है, पर एक्स के लिए कंडीशन ये है कि जो अमाउंट ये देगा ये प्रायर अप्रूवल इन जनरल मीटिंग ऑलरेडी हुआ रहेगा, एंड ओके, इसमें एक्स लिमिटेड का टोटल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग मिस्टर बी 11% से ज्यादा ना हो, शुड नॉट बी मोर देन 11%। समझ में आया मालिक? यानी मेरे को बताओ, एक्स लिमिट टोटल रेम्यूनरेशन कितना दे रहा है? 11%, 11 से ज्यादा नहीं जा रहा है। 11 में से मिस्टर ए का पैसा निकल ही रहा है, उसके बाद भी पैसा बच रहा है। तो समझ में आया? अब वो चाहते हैं कि मिस्टर बी को भी वो लोग पैसा देवे, जबकि मिस्टर बी कौन सी कंपनी का एमडी है? वाई लिमिटेड का, वो एक्स का नहीं है, वाई का है। तो बस एक्स लिमिटेड में रिजोल्यूशन पास किया जाएगा कि मिस्टर बी जो कि वाई लिमिटेड का एमडी है, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज है वो हम लोग पे करेंगे हमारी कंपनी से वापस। आप मेरे को ये मत पूछना ये क्यों हो रहा है सर। ओके, ये ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, तो लिमिट्स एप्लीकेबल नहीं है।
कुछ समझ में आया? देखो सेक्शन 3 को अपन एक्सेप्शनल केस देख रहे हैं। एक्सेप्शनल मतलब लिमिट्स की जरूरत नहीं है, अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इस केस में ये एग्जांपल हुआ आपके लिए। ओके, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। दिस इज फॉर, मैं इसके ऊपर लिख के रख रहा हूं, सेक्शन 3 एग्जांपल 1। सर और इसमें पहले 11% के ऊपर देने के लिए एसआर ले लिया आपने। एसआर नहीं होता 11 के ऊपर, 11 हाँ ओआर ले लिया, तो अपना लिमिट नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। कंडीशन क्लियर है कि आपका सेक्शन की लिमिट में होना चाहिए, सेक्शन की लिमिट में होना चाहिए 11%। सेक्शन कंडीशन क्लियर है, कंडीशन एकदम क्लियर बोलती है सेक्शन 197 की लिमिट में होना चाहिए, ऐसा है। हाँ, अभी उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, इसमें 2-3 है पर मैंने केस पढ़े, पर इस पर केस नहीं आया अभी तक। ऐसा भी हो सकता है 197 क्या बोलता है, 11 के ऊपर चाहिए तो ओआर पास करो, लेकिन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, क्योंकि यार ऐसा दिया तो फिर तो कुछ भी अंधाधुंधी पे ऐसा चला जाएगा, फिर तो 10 कंपनी को देते रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी आप तुम बोलोगे, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ कि एग्जांपल ऐसा क्यों हो सकता है सर, ऐसा क्यों हो सकता है। लेट अंडरस्टैंड एक्स लिमिटेड का टर्नओवर 100 करोड़ है, कितना है 100 करोड़, और इनको रॉ मटेरियल चाहिए और रॉ मटेरियल दे रही है वाई लिमिटेड, ठीक है, और वो रॉ मटेरियल की वजह से हम लोग 98 करोड़ टर्नओवर अचीव कर रहे हैं, 2 करोड़ किसी और की वजह से अचीव कर रहे हैं। अभी अपने को समझ में आ रहा है उसमें वो रीजन क्या है, वो रॉ मटेरियल टाइम पे मिलना जरूरी है, और ये देने का काम मिस्टर बी बहुत अच्छे से कर रहा है। और अगर वाई लिमिटेड ने मिस्टर बी को सैलरी या रेम्युनरेशन नहीं दिया तो मिस्टर बी छोड़ के जा सकता है। क्या मिस्टर बी छोड़ के गया तो क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी इंपैक्ट होगा? ये पॉइंट है, ये चीज, ये केसेस वैसे होते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है तुमको, केसेस समझ में आया? केसेस मैंने एग्जांपल बता दिया, एंड दिस इज एक्चुअल केस लॉ, मतलब ये जो हुआ था ये एक्चुअल केस लॉ है, और इसके बाद इन्होंने सेक्शन में डाल दिया। पहले ऐसा हुआ है, उसके बाद ओके हुआ है, और उसके बाद सेक्शन में डाल दिया, पर सेक्शन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया कि आपकी लिमिट्स में होना चाहिए, फिर आपने लिमिट्स को एक्सीड मत करिए, बस ये पॉइंट है। मेरे ख्याल से क्लियर, सेक्शन 3 मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो सेक्शन 1 गया, सेक्शन 2 गया, सेक्शन 3 गया। मां कसम, सेक्शन 1 क्या था, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी 197, सेक्शन 2 क्या था, लॉस मेकिंग, तो उसमें क्या है, लिमिट ए लिमिट बी कंडीशंस, ठीक है। सेक्शन 3 कितनी पॉइंट है, 5 एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केसेस, कितने, 5 में क्या क्या था, अदर कंपनी पेइंग, एग्जांपल स्क्रीन पे गया। दूसरा क्या था, न्यू कंपनी 7 साल, सिक कंपनी 5 साल, ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट किया, और सीआईआर प्रोसेस चल रहा होगा। फिर इसके लिए आपको रटना पड़ेगा भी, ये रटना पड़ेगा, मैंने रटने का तरीका बता दिया है, ओके, मैंने इसमें आपको रटने का तरीका क्लियर होना चाहिए। सेक्शन 4 क्या बोलता है, सेक्शन 4 बोलता है जो आप लॉस मेकिंग कंपनी में, देखो प्रॉफिट मेकिंग में तो कोई इशू नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी में आप जब रेम्युनरेशन दोगे तो ये चीजों को इंक्लूड मत करना, ये चीजों को इंक्लूड नहीं करना। तो कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की जाएगी, प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेचुटी फंड, एनकैशमेंट ऑफ लीव। और अगर कोई नॉन रेसिडेंट आ रहा है तो नॉन रेसिडेंट को मालूम है अलाउंस देते अपने, उसको उसके फैमिली के लिए अलाउंस देते हैं आने का करने का, उस केस में ये चीजें इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ये याद रखना, सेक्शन 5 क्या बोलते हैं, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन रेम्युनरेशन, नॉट टू बी इंक्लूडेड इन रेम्युनरेशन, यानी जो अगर मैं, मेरे को बताओ इफेक्टिव कैपिटल अगर 5 करोड़ है तो 4 करोड़ तो कितना दोगे रेम्युनरेशन, इफेक्टिव कैपिटल 4 करोड़ है तो 60 लाख, 60 लाख में अगर प्रोविडेंट फंड नहीं आएगा, ग्रेचुटी नहीं आएगा, सुपर एन्युटी नहीं आएगा, समझ में आया, इनकैशमेंट नहीं आएगा, वो अलग से दिया जाएगा। 60, हाँ ओवर एंड अबव उसको देना, ये देना उसके ऊपर रहेगा अमाउंट। आई डू थिंक गेट गॉट द पॉइंट। यानी अगर सपोज उसका पीएफ वीएफ सब मिला के 70 लाख हो रहा है, तो अब ये मत बोलना कि एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला था, ओआर के ये लिमिट के ऊपर दे सकते हैं अपन, ये लिमिट के ऊपर दे सकते हैं ना बेटा, ये लिमिट के ऊपर क्या देने के लिए क्या चाहिए, एसआर। तो अब वो सब मिला के 70 लाख हो रहा है, और एक्चुअली 58 लाख हो रहा है, एक्चुअली 58 लाख हो रहा है, और सब फंड मिला के 70 लाख हो रहा है, तो क्या ओआर पास करना पड़ेगा, एसआर, ओआर ही करना होगा, एसआर नहीं होगा। मेरे ख्याल से क्लियर, एवरीबॉडी डन। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज सेक्शन 5, ओके, मेरे ख्याल से तो क्लियर नहीं है, मेरे ख्याल से अभी दिक्कत नहीं है, अभी हो गया अपन कंट्रोल में, अभी कंट्रोल में, तोड़ कंट्रोल में चैप्टर 3, अभी कोई टेंशन नहीं, अगर ये बैठ गया तो अभी खाली कैलकुलेशन करना है अपने को, पर कैलकुलेशन बाद में करेंगे जब इफेक्टिव कैपिटल आएगा, तो मैं 2-3 कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा आपको कि इनएडिक्वेट प्रॉफिट कैसे क्या रहता है। मेनली है ना, स्टूडेंट का डाउट किस में रहेगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब कैसे डिफाइन करोगे। अभी एग्जांपल लेट एज्यूम आपका रेम्युनरेशन 4 करोड़ है, नरेंद्र का रेम्युनरेशन 4 करोड़ है, सॉरी 4% है, 4% विद इन द लिमिट है ना, प्रॉफिट का 4%, ओके, अभी 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ तो 4% कितना हुआ, 4 लाख। कैसे 4% कितना, 4 लाख, मैं 1 करोड़ 10 करोड़, सॉरी 10 करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ का प्रॉफिट है तो कितना हुआ, 40 लाख। देखा जाए तो इधर से मिला तो 60 लाख मिलता था, समझ में आया। तो जो एमडी है वो जब अपॉइंट किया जाएगा वो कैलकुलेशन मारता है एवरेज पे, और अगर वो बोलता है कि भाई 10 करोड़ का ही प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरे लिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो फिर वो इस बेसिस पे कैलकुलेशन करेगा।
आई डू थिंक तुमको समझ में मतलब मैं क्या, मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब क्या, मतलब 10 करोड़ इनएडिक्वेट है डायरेक्टर के हिसाब से, एमडी के हिसाब से, समझ में आया? अपने हिसाब से एडिक्वेट इनएडिक्वेट नहीं है, तुम्हारा जजमेंट नहीं पूछा जाएगा, ये कैलकुलेशन मारा जाएगा। यानी मेरे को बताओ, कोई भी डायरेक्टर रहा, मिनिमम एमडी रहा, एमडी कितना लेके जाना चाहिए? 60 लाख तो लेके जाएगा ही। आई डू थिंक आप झेप रहा कि मैं ये क्यों इतना ऐसा आ रहा है, नहीं तो फिर यार पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बनने की जगह मैं और कौन सी मतलब ये सब आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रियलिटी में कैसा वर्क होगा। ये सिनारियो होता है मेरे ख्याल से मालिक, क्लियर? यानी एक एमडी को मिनिमम कमाई कितनी? 60 लाख, कि कुछ भी हो जाए, ये सिनारियो, लॉस हो या प्रॉफिट भी हो जो कम हो। बैठ गया सर, आई डू थिंक बैठ गया, नहीं बैठा तो छोड़ दो, जाने दो, क्या है, जब डायरेक्टर बनेंगे एमडी बनेंगे तब देख लेंगे, ठीक है? ओके, नेवरदलेस लास्ट सेक्शन है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, ये सेक्शन के लिए एग्जांपल मैं पूछता हूँ। ओके, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, मिस्टर ए इज एमडी इन बोथ, मिस्टर ए इज एमडी इन बोथ, माँ कसम वो बन सकता है एमडी, ये मैंने बताया था। ओके, वाई ने बोला इसको 5% ऑफ एनपी और एक्स ने भी बोला 5%। अपन एसआर वैसआर नहीं करते, एसआर भी डालोगे तो कोई कुछ नहीं, वही कैलकुलेशन होगा, लेकिन ठीक है मैं ऐसे बोल रहा हूं। अब मेरे को बताओ, ओके, एक्स लिमिटेड का 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और वाई लिमिटेड का 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो 5% ऑफ 100 करोड़ कितना हो बेटा? 5 लाख नहीं रे, 10 लाख करोड़ में है भाई, 100 करोड़ है, 5% है 5 करोड़ और 1000 का 50 करोड़, तो क्या ये 55 करोड़ लेके जाएगा? सेक्शन 5 ने वो रोक दिया है। सेक्शन 5 ने बोला ये तुम दोनों कैलकुलेट करो, दोनों में से जो हाईएस्ट होगा दैट विल बी मैक्सिमम लिमिट विच कैन बी विड्रॉन। अब वो विड्रॉ कैसे करेगा वो उसका चॉइस है, मतलब मैक्सिमम उसको पैसा कितना मिलने वाला बेटा? मैक्सिमम दोनों में से जो हाईयर है वो 50 करोड़ ही उसको मिलेगा। अब 50 करोड़ में से इधर से वो 45 सीआर निकाले, 5 सीआर इधर से निकाले, या 48 सीआर इधर से निकाले और 2 सीआर इधर से निकाले, वो उसकी चॉइस है। नहीं समझा? ओके, लेकिन लिमिट विल बी मैक्सिमम। हाँ, पर ऐसा नहीं कर सकता इधर से 40 निकालेगा और इधर से 10 निकालेगा, पॉसिबल ही नहीं। इधर की लिमिट कितनी है? 5। आई डू थिंक समझ झेपा मालिक। तो दो कंपनी से अगर एमडी है तो मैक्सिमम रेम्युनरेशन कितना होगा? दोनों में से जो हाईएस्ट रेम्युनरेशन होगा दैट विल बी स्लैब मैक्सिमम लिमिट, और वो कौन सी कंपनी से लेना ही कैन डिसाइड, जो मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से सेक्शन 5 भी क्लियर अभी। तो सेक्शन 5 में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अभी क्या दिक्कत है? अब शेड्यूल 5 तो तेरे को रटा होना चाहिए पूरा। तो शेड्यूल 5 मेरे को बता, शेड्यूल 5 कितने इसमें डिवाइड करेगा तू? 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 सीजी के अप्रोच चाहिए, कितने केसेस है? 4। ओके, पहले क्या? कन्विक्शन, दूसरा डिटेन्ड, या वर्ड याद रखो, कन्विक्शन, डिटेन्ड, कॉफी पोसा वाला था, तीसरा एज, चौथा रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट वाला कॉन्सेप्ट गया, ये खत्म स्टोरी। उसके बाद है पार्ट 2। पार्ट 2 में कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन। सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5। 1 में क्या था? वो क्या प्रॉफिट रहा तो 197 में जाओ, लॉस रहा तो कितने लिमिट? 3, लिमिट ए, लिमिट बी एंड अदर। लिमिट ए में अपने क्या देखा? अपन ने 60 लाख, 84 लाख, 120 और 120 प्लस 0.01, क्लियर। और उसके बाद है लिमिट बी में, लिमिट बी में ये प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए, इसका कोई रिलेटेड नहीं होना चाहिए, 2 साल का देखा जाएगा और 0.5% शेयर होल्ड कर सकता है। और अदर कंडीशन में बोर्ड या एनआरसी का अप्रूवल चाहिए, ओआर और एसआर चाहिए, और पीएफआई, बैंक, डिबेंचर होल्डर उनका अप्रूवल चाहिए। और लास्ट कॉन्सेप्ट है जो नोटिस दी जाएगी जनरल मीटिंग की, उसमें लिखा होना चाहिए कितना अमाउंट है। सेक्शन 3 क्या था? एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल में कितना है? 5। अदर कंपनी पे कर रही होगी, न्यूली कॉर्पोरेटेड 7 साल हो गए, ओके, सिक इंडस्ट्री है 5 साल हो गए, ओके, या एनसीएलटी ने किया होगा तो उसका जब तक बोला जाएगा, और लास्ट कॉन्सेप्ट है सीआर जब तक चलेगा तब तक है। और सेक्शन 4, ओके, वो लिमिट में क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड, सुपरवेंडेंट फंड, लीव एनकैशमेंट और नॉन रेसिडेंट को अलाउंस। और सेक्शन 5, ओके, एमडी अगर 2 कंपनी से विड्रॉ करा होगा, मैक्सिमम जो उसकी लिमिट होगी, खत्म हो गई। शेड्यूल 5 तो पूरा तुम्हारे हाथ में आ जाना चाहिए, अभी कंट्रोल में आना चाहिए मेरे ख्याल से मालिक, क्लियर। और पार्ट 3 बोलता है ये जिस दिन हो जाए, मेरे को बताओ ये सब रिजोल्यूशन से पास होगा? बिना रिजोल्यूशन के होगा नहीं, तो रिजोल्यूशन कौन सा होगा तुम्हारे पास? ओआर और एसआर। मेरे को बताओ एसआर कब होगा? लिमिट के ऊपर रहा तो, बाकी अदर देन दैट केस ओआर, खत्म स्टोरी। दूसरा, सर्टिफाइड बाय ऑडिटर होना चाहिए, ऑडिटर या सीएस, जो आपका प्रैक्टिसिंग सीएस है उसने सर्टिफाई करना चाहिए, और ये सर्टिफिकेशन किसके पास पहुंचना चाहिए? आरओसी। स्टोरी ओवर। सेक्शन 3 बोलता है दैट्स इट। ओके, आरओसी की फाइल किए बिना ही काम नहीं होगा। शेड्यूल 5 बचा क्या? शेड्यूल 5 अभी बचा, मतलब लॉजिकली स्पीकिंग दिस इज योर कंप्लीट पार्ट। अगर चैप्टर 3 का कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए तो 196, 197, शेड्यूल 5, ये 3 सेक्शन तुम्हारे 3 पोर्शन अगर कंट्रोल में है तो अभी मेरे ख्याल से चैप्टर 3 में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अभी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए।
नाइट डू थिंक अभी तीनों कंट्रोल में है, बस आप इसको रट लो वापस एक बार अच्छे से रटो, और इसमें मिस नहीं होना चाहिए कोई पॉइंट। सर इसमें से और कुछ याद रखे, देखो इफेक्टिव कैपिटल अपने को समझना होगा, इफेक्टिव कैपिटल में क्या आएगा, लेकिन वो मैं आज नहीं समझा रहा, वो मेरा क्राइटेरिया है, मैं जब वो कैलकुलेशन करता हूँ तब देखूंगा, लेकिन पर ये है कि अपने को वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर मैंने इनएडिक्वेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझा दिया, यानी आपको कैसे समझेगा इनएडिक्वेट प्रॉफिट है कि नहीं है। नहीं नहीं, ये करना ही नहीं है, नेगेटिव और 5 करोड़ छोड़ दे, ये तो मैं बताया तुमको, वैसे नेगेटिव हो या लेस देन 5 करोड़ हो, तुमको कैसे मालूम पड़ेगा मेरे को इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। किससे कम मिल रहा होगा, 60 लाख से कम। अरे मिनिमम तेरे को कितना मिलना चाहिए, 60 से कम मिल रहा है तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट। मेरे ख्याल से अभी समझ में आया। यानी अगर कल कंपनी का एमडी बनेगा और तेरे को कैलकुलेशन करना है कि तेरे को 60 लाख से ज्यादा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 लाख से कम मिला तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट, फिर तेरे को ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तेरे को ऐसे अप्रूवल लेके काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्लियर मालिक, ओके डन मालिक। ये होने के बाद अभी छोटे मोटे सेक्शन बचे हैं, छोटे मोटे सेक्शन अपन खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके छोटे मोटे सेक्शन में अभी अपने पास क्या बचे, उसके पहले मैं दिखा दूं। ओके स्क्रीन पे देख लो, अपन ने 196 क्लियर कर दिया, 197 डन कर दिया, शेड्यूल 5 पूरा डन कर दिया। शेड्यूल 5 तो चार्ट याद रहना चाहिए तेरे को, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। पार्ट 3 क्या था, पार्ट 3 था ओआर और एसआर चाहिए, सीए या सीएस का सर्टिफिकेट चाहिए और आरओसी का फाइल होना चाहिए। पार्ट 3 में तो कुछ भी नहीं है बे, ये शेड्यूल पूरा आया तो लगेगा, नहीं तो वो लगने वाला ही नहीं है। अपना मेन खाली क्या है, पार्ट 2 और पार्ट 1। पार्ट 2 मैंने रटने के लिए, पार्ट 1 तो ठीक है, और एक्सेप्शनल केसेस के भी एग्जांपल समझा मैंने, तो मतलब तुम्हें पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि एग्जांपल आया तो कैसे लिखना है मेरे को। अब बचे ये 7 वाले सेक्शन, 200, 201, 202, 199। उसके बाद आएगा 203, 204, 205 देखेंगे मालिक। तो पहले बात कर लेते हैं 200, 201, 202, 199 सादे सुधे सेक्शन है। अब यहां पर दिमाग नहीं लगेगा, एक्सेप्ट एक जगह आंसर रटना होगा, वो किधर रटना होगा मैं बता दूंगा। सबसे पहले 200, क्या कंपनी लिमिट कर सकती है रेम्युनरेशन, आंसर इज यस। ओके लिमिट कर सकती है, यानी एग्जांपल मेरे को बताओ मिनिमम कितना मिलना चाहिए, अभी तुमको समझ में आ चुका हो। तो पब्लिक कंपनी की कितना मिलना चाहिए मिनिमम, 60 के लिए रोएगा ना, लेकिन कंपनी को लगता है यार तू 60 के लिए क्यों रो रहा है, अगर तेरे को मालूम है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खस्ता है, थोड़ा पहले अच्छा होने दे फिर कमा। दूसरा, तेरे को कंपनी से ओके प्रोफेशनल कैपेसिटी में भी 2-4 लाख मिलते हैं, 2-4 करोड़ मिलते हैं। देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर तेरे को मालूम है ये शेड्यूल 5 के पहले मैंने क्या बताया था, ब्रेक के पहले अपना डिस्कशन हुआ था, प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो पैसे मिलेंगे वो इसमें कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। सीए तूने टैक्स रिटर्न फाइल किया था, याद आया, वो इसमें नहीं आएंगे। तो अगर तू उसमें से भी कमा रहा है तो काय के लिए रो रहा है तू, या तू रिटर्न फाइल करने के भी अलग से चार्ज कर रहा है तो काय के लिए रो रहा है। तो अदर कैपेसिटी, तू और किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उधर से ले रहा है ना, कुछ समझ में आ रहा है। तो देखो मैं उसको फोर्स नहीं करूंगा, मैं ये फैक्टर्स है, क्या है, फैक्टर्स टू लिमिट द रेम्युनरेशन, कंपल्सन नहीं है, कंपनी की मर्जी जाएगी। पहले मैं बता रहा हूं ये प्रॉब्लम क्या हुआ, ये सेक्शन का ड्राफ्टिंग का प्रॉब्लम क्या था, जब पहले सीजी मेरे को मैं आपको एक चीज बता दूं क्लियर, अभी मेरे को बता शेड्यूल 5 में सीजी का अप्रूवल कब तक चाहिए, खाली शेड्यूल 5 में सीजी का अप्रूवल कब चाहिए, पार्ट 1 में, पार्ट 2 पार्ट 3 में था क्या, 2 साल पहले तक पार्ट 2 में भी था। यानी लॉस मेकिंग कंपनी है तो ओआरएसआर पास करो, लेकिन किसके अप्रूवल लो, सीजी। अब सीजी आपको लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा मतलब 60 लाख देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या ध्यान में रखेगी, कुछ समझ में आ रहा है। तो सेक्शन ऐसा था, ये ध्यान में रखेगी। लेकिन सीजी का अभी अप्रूवल का कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया 2 साल पहले, तो अभी सीजी के पास लिमिट 2 के लिए, लिमिट 2 मतलब सेक्शन 2 के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर इनको समझ में नहीं आया सेक्शन 200 क्यों निकाले, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं सेक्शन 200 को हम लोग कंपनी डालते हैं, क्योंकि अभी अमाउंट कौन डिसाइड करेगा, कंपनी, कंपनी मतलब शेयर होल्डर। तो जब शेयर होल्डर डिसाइड कर, कंपनी मतलब बोर्ड, याद होगा व्हाटएवर कंपनी कैन डू बोर्ड कैन डू, तो वो कंपनी यानी बोर्ड अभी डिसाइड कर सकता है कि भाई फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तेरे को और कुछ पैसे मिल रहे हैं क्या, ओके तेरे को किसी और कंपनी से पैसे मिल रहे हैं क्या, ये सब देखा जाएगा, और तेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है क्या इस पॉइंट के लिए, और एनी अदर पॉइंट विच आर डिफाइंड। तो इसमें अगर मैं बोलूं तो ये 200 में पहले क्या लिखा था मालूम है, सीजी शुड कंसीडर दिस पॉइंट टू लिमिट द रेम्युनरेशन, अभी क्या आ गया, कंपनी शुड कंसीडर टू लिमिट द रेम्युनरेशन। मेरे ख्याल से समझा, आई एम जस्ट गिविंग ए बैकग्राउंड, मतलब सी राइट नाउ डोंट मेक योरसेल्फ कंफ्यूज, अरे सर क्या ये, मैं खाली कंफ्यूजन के लिए नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये बता रहा हूं सेक्शन क्यों डाल दिया, जबकि अभी वो ज्यादा सेक्शन का रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड एंड अदर थिंग्स दे डिसाइड ऑन देयर ओन, बट टू द एक्सटेंट ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस बता रहा हूं मैं। तो अभी आप एक ब्लाइंडली याद रखो, मेरे को बताओ सीजी का अप्रूवल खाली किसके लिए चाहिए, पार्ट 1 के लिए, बाकी पार्ट 2 के लिए नहीं चाहिए, पहले चाहिए था 2 साल पहले तक, अभी खाली पार्ट 1 के लिए चाहिए, बस खत्म। क्लियर मालिक। तो 200 सेक्शन क्या बोलता है, रेम्युनरेशन को क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट कर सकते हैं। तो रेम्युनरेशन को लिमिट करना है, यानी एग्जांपल मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, ये क्यों आवाज कर रहा है भाई, अबे पको
क्या गाना चालू कर दिया भाई, अपने आप गाना चालू कर दिया भाई। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया मालिक? तो सेक्शन 200 क्या बोलता है? लिमिटिंग द रेम्युनरेशन। वापस मैं बता रहा हूं, ये सेक्शन के इंटरप्रिटेशन अच्छे से ध्यान रखते जाओ। मेरे को बताओ मिनिमम कितना लेके जाएगा एमडी? 60 लाख। ये तो अभी समझ झेप गया, लेकिन 60 से कम कर सकते हैं क्या? हाँ, 200 सेक्शन को यूज कर सकते हैं। मतलब अगर एग्जांपल 40 लाख आ रहा है, 40 लाख आ रहा है, ओके, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को 60 चाहिए मिनिमम, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे ए भाई कंपनी की हालत खस्ता है, कंपनी को थोड़ा चलने दे, बाद में देता हूं मैं आपको पहले भी समझा रहा हूं कि इफ यू थ्रो ए पीनट्स यू विल गेट ए मंकी। ओके, आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन कंसिडरेशन कर सकते हो ना आप, सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, अपन निगोशिएट करते हैं ना कि नहीं भाई सर एक काम करो सस्ता दे दो ना सर, कर देना, ऐसा होता है ना, वही कॉन्सेप्ट इधर। तो ये कंसिडर कर सकते हैं 200, लेकिन ये कंपनी है, शेयर होल्डर नहीं है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर का कुछ नहीं, शेयर होल्डर का खाली हाँ या ना होगा, कैसे? ओआर से। मेरे ख्याल से क्लियर? ओके, इसके बाद है, मेरे को बताओ सीजी का अप्रूवल कब लगेगा आपको? पार्ट 1। ओके, अब मेरे को बताओ उसमें कौन सा रूट लेंगे अपन, फर्स्ट रूट या सेकंड रूट? सेकंड रूट। ओके, सेकंड रूट याद आया? सेकंड रूट में कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, MR1 या MR2? MR2, वही पॉइंट है 201। सीजी अप्रूवल में MR2 भरना पड़ेगा, लेकिन साथ में और एक चीज दी है आपको, ये नोटिस, ये जो MR2 भरोगे उस टाइम पे ये नोटिस देनी, कंपनी को नोटिस देनी जरूरी है, किसको? मेंबर्स को, कि हम लोग सीजी के अप्रूवल के लिए जा रहे हैं। देख मेरे को बताओ सेकंड रूट, मेरे को याद करके बताओ, सेकंड रूट याद करके बताओ। सबसे पहले बोर्ड अप्रूवल, फिर बोर्ड के बाद OR, याद आया? और OR के बाद सीजी है ना, तो OR में नोटिस जाएगी मेंबर को कि ये सीजी के अप्रूवल के लिए जाने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 का वायलेशन है। क्लियर? और वो ओके हो, वो ओके मतलब इंटीमेट गया, उसके बाद न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा, 2 लोकल न्यूज़पेपर। तो ये कौन से सेक्शन ने बोला? 201 ने। 201 ने ये 3 चीजें दी, MR2 दो, जनरल नोटिस टू मेंबर दो। जनरल नोटिस टू मेंबर क्या की देनी है कि ये पार्ट 1 का वायलेशन है, इसलिए हम सीजी के पास डाल रहे हैं। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? और वो जो नोटिस दोगे वो 2 न्यूज़पेपर में, आपके लोकल जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश होनी जरूरी है, ये कॉमन पॉइंट है, 201 ने बताया। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर करिए। तो 199, 200 और 201 ये दोनों थोड़े टाइम के लिए इग्नोर ही कर दीजिए, ज्यादा एक बार इन मार के छोड़ देने का। एवरीबॉडी क्लियर? 202 अपने लिए बाप कॉन्सेप्ट है, ये एलडीआर कॉन्सेप्ट, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सर हु कैन रिमूव द एमडी? बोर्ड। ओके सर, मेरे को बताओ कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं एमडी को अपन? 5 साल। 5 साल के पहले रिमूव कर दिया तो एमडी का नुकसान होता है, क्योंकि वो एमडी कितनी कंपनी में बन सकता है? मैक्स टू मैक्स 2, पर अपन एज्यूम करते हैं एक में ही बनता है, क्योंकि एक में पूरी जान जिगर सब कुछ डाल देता है, और आप टर्म के पहले उसको निकाल देते हो। आपने उसको बोला 5 साल के लिए तो इधर बनेगा, तो उसने भी कुछ विजन रखे होंगे ना, उसको थोड़ा टाइम दो। ओके, तो इस केस में ये लोग बोलते हैं अगर तेरे टेन्योर के पहले हम निकालेंगे, ओके, तो तेरे को कंपनसेशन मिलेगा। क्या बोला हमने? अगर तेरा टेन्योर कितना था? 5 साल। 5 साल के पहले अगर हम निकालते हैं तो तेरे को क्या मिलेगा? कंपनसेशन मिलेगा, और कंपनसेशन कैन बी क्लेम अंडर सेक्शन 202। हु कैन क्लेम दिस कंपनसेशन? एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, बस। डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर को निकालने का राइट किसके पास है? हाँ बस ये चीज आनी चाहिए 169 में, डायरेक्टर निकालते 169 में। ओके, मैं ये किसको निकालने की बात कर रहा हूं? एमडी। कैन एमडी बी रिमूव्ड बाय 169? नहीं। एडिटिंग समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी एडिटिंग समझ, जे पुराना पॉइंट। तो डायरेक्टर निकाल सकता है, लेकिन एमडी को निकालने का पावर, एमडी या मैनेजर या डब्ल्यूडी को निकालने का पावर बोर्ड के पास होगा। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है क्या बोर्ड निकाल सकती है? हाँ, तो टेन्योर के पहले भी निकाल सकती है। ओके, निकाल सकती है, ठीक है। तो क्या क्लेम कर सकते हैं लोग? कंपनसेशन। क्लियर है? सेक्शन कौन सा? 202। रटो 202 में कंपनसेशन मिलता है। 202 में क्या मिलता है? कंपनसेशन। किसको मिलता है? एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर। लेकिन अगर ये 6 केसेस की वजह से तू निकला है, 6 केसेस बता रहे हैं, कितने केसेस? 6 की वजह से तू निकला है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ओ 6 केसेस की वजह से निकला तो तेरे को क्या नहीं मिलेगा? कंपनसेशन नहीं मिलेगा। 6 केसेस में पहला केस, कंपनी का एमलगमेशन हुआ, और एमलगमेशन होने के बाद नई कंपनी में हमने तेरे को डायरेक्टर बनाया, तू छोड़ के गया। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो? एमलगमेशन हुआ, हमारी कंपनी का क्या हुआ? एमलगमेशन, और नई कंपनी बनने के बाद उसमें मैंने तुझे डायरेक्टर बनाया और तू नहीं बन रहा है। एमडी मतलब, हाँ एमडी मतलब एमडी बनाया, सॉरी डायरेक्टर मतलब एमडी बनाया, वो आप वो उसको यूज करो। अभी एमडी बनाया पर तू नहीं बन रहा है, तू बोल रहा है नहीं मैं तो पुरानी कंपनी में रहूंगा, ऐसा नहीं। समझ में आया? तो अब इस केस में कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हम हाँ, कंपनसेशन कब मिलेगा? अगर एमलगमेशन हुआ और हमने तुम्हें एमडी की पोजीशन से निकाला तो तू कंपनसेशन क्लेम कर ले, क्योंकि तू यार तेरा टेन्योर के पहले तू निकल रहा है, और तू तेरी वजह से नहीं हमारी वजह से निकल रहा है, तो तेरी वजह से निकलेगा तो फिर क्लेम नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट ये सब क्या कहानी है, मेरे ख्याल से क्लियर है। दूसरा पॉइंट, ओके तूने रिजाइन किया,
एमडी 5 साल के लिए था, 2 साल में तो बोला टाटा बाय बाय, और बोलता है कंपनसेशन दो कंपनसेशन दो। अरे क्या मजाक चल रहा है? यानी 167 तूने डाला, 167 रेजिग्नेशन वाला, याद है ना मालिक? और तूने डाला 167, सॉरी 168, आई मिस्ड आउट, 168, 167 इज फॉर वेकेशन, 168 इज फॉर रेजिग्नेशन। 168 तूने डाला और तू मांग रहा कंपनसेशन, पॉसिबल नहीं होगा। और 168 डायरेक्टर के लिए, रेजिग्नेशन फॉर एमडी कैन बी अलग, वो डायरेक्टर रहना भी जाता है, पर व्हाटएवर, हम क्या बोल रहे हैं, रेजिग्नेशन दिया तूने, ओके, और तू क्लेम नहीं कर सकता। तीसरा 167 हुआ तो भी क्लेम नहीं कर पाएगा। 167 मतलब वेकेशन ऑफ ऑफिस। अब थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाओ, मेरे को बताओ एमडी कब बन पाएगा? जब वो डायरेक्टर होगा। अगर डायरेक्टर ही नहीं है तो एमडी नहीं बनेगा। अगर वेकेशन किसके लिए एप्लीकेबल है? एमडी के लिए नहीं, डायरेक्टर के लिए। 167, अगर 167 एक्टिवेट हो गया, एग्जांपल 184, 167 में आराम से घाई मत करो, 167 आज ही बताया मैंने। 167 में 167 के पॉइंट्स याद है? उसमें 184 अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो भी मैं निकलना पड़ेगा ना, उसने नहीं किया डिस्क्लोज, तो 184 में मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो 167 मेरे को वेकेट करना पड़ेगा, एमडी को भी वेकेट करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टर रहा तो एमडी रहेगा, डायरेक्टर रहा तो एमडी रहेगा, और एमडी रहेगा मतलब तुम समझे? तो इस केस में तुझे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो पहला क्या था? अमलगमेशन, वर्ड याद रखो, अमलगमेशन, रेजिग्नेशन, 167। ओके, तेरी वजह से कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, तेरी वजह से क्या हुआ? कंपनी का वाइंडिंग अप, यानी कोर्ट वाला केस जैसा, यानी वाइंडिंग अप हुआ, उसका कारण तू है, तो वाइंडिंग अप तेरी वजह से हुआ। चौथा, तूने फ्रॉड किया और इसलिए तू निकला, तेरे को निकाला गया। क्यों निकाला गया तेरे को? तूने फ्रॉड किया। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट, तूने ऐसा कोई एक्ट इंस्टिगेट किया जिसकी वजह से तुझे निकाला गया है। ऐसा कोई एक्ट इंस्टिगेट किया जिससे तुझे निकाला गया, तूने इंस्टिगेट किया। एग्जाम्पल, बोर्ड मीटिंग चल रही थी, बोर्ड मीटिंग में मैं एमडी हूँ, अमित आदे, और ये सब चल रहा, बोर्ड मीटिंग चल रहा है, ये सब चल रहा था, और बीच में यश अचानक ऐसा बोलता है, नहीं 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 होना चाहिए, अमित आदे नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी सटक चमा झप करके चमाड़ दिया मैंने। ओके, अब आपने बोला एमडी निकल, ऐसा हमारा एमडी नहीं हो सकता। ओके, मैं बोला ठीक है, मैं निकलने को तैयार हूँ, कंपनसेशन दो। ओके, 202 में कंपनसेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ये एमडी को निकलने के लिए इंस्टिगेट क्यों किया है? सब लोग क्यों बोले निकलो? मैंने ऐसा एक्ट किया इसलिए तुम लोग ने निकाला, तो एक्ट मैंने किया जिसकी वजह से तुमने मुझे निकाला होगा, तो उसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। का नहीं, ये जनरल है ना, तुमने निकालने का कारण बताइए कुछ ऐसा, ये कारण समझे? देखो, आप पहले दिन से अपने दिमाग में रखना चाहिए, कारण कभी नहीं होंगे, एक्ट कभी कारण नहीं बताएगा, लेकिन तेरी वजह से, हाँ, फिर LIC एस्कॉर्ट्स, हाँ, तो फिर तुम्हारी वजह से तुमने कुछ कारण किया जिसकी वजह से, अब कारण क्या है वो बोल नहीं रहा है, पर निकला तू तेरे कारण की वजह से, समझा? तो ये 6 केसेस में तुम्हें क्या नहीं मिलेगा? कंपनसेशन, रट लो। ओके, पहला अमलगमेशन, रिजाइन करना 167, उसके बाद वाइंडिंग अप तेरी वजह से हुआ, और उसका फ्रॉड तूने किया और इंस्टिगेट तूने किया। ये 6 के अलावा कुछ भी हुआ तो तेरे को कंपनसेशन मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कंपनसेशन कितना मिलेगा, तो उसमें 2 क्राइटेरिया है, तो ये दोनों रट लेने के। जितना तेरा टर्म बचा होगा और 3 ईयर, जितना टर्म बचा होगा और 3 ईयर विच एवर इज शॉर्टर। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, ओके, अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले कितना ईयर होना चाहिए वो कैलकुलेशन करेंगे। तो जितना तेरा टर्म बचा है, यानी एग्जांपल लेट एज्यूम, ओके, तो एमडी बना अभी 5 साल के लिए और 2 साल के बाद निकाल दिया, ओके, तो 3 साल बचा, 3 ईयर्स और 3 ईयर्स विच एवर इज लोअर, ठीक है, तो 3 साल के बाद निकाला गया, तो कितना? 2 ईयर्स और 3 ईयर्स विच एवर इज लोअर, तो 2 ईयर। ओके, तू 1 साल में ही निकाल दिया गया, तो तेरे कितने बचे थे? 4 साल, 4 ईयर और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, तो 3 ईयर। आई डू थिंक क्लियर? अब 3 ईयर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर? मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, ये तो ईयर हुआ, मल्टीप्लाई करने के लिए अमाउंट का क्राइटेरिया दिया है, आपका एवरेज रेम्युनरेशन निकाला जाएगा। एवरेज रेम्युनरेशन निकालने के लिए क्या होगा? 3 साल का एवरेज रेम्युनरेशन, पिछले 3 साल, जस्ट पिछले 3 साल, और अगर आपका अपॉइंटमेंट 3 साल से कम है, जितना भी अपॉइंटमेंट होगा उसका एवरेज, अगर एग्जाम्पल 2 साल के है तो 2 साल का एवरेज निकालेंगे। कुछ समझ में आया क्या? नहीं 3+1 नहीं, मतलब वो पिछले साल का है ना, वो ईयर वाइज, इस साल का प्लस करेगा ही नहीं ना तू। एग्जाम्पल मैं जून में छोड़ दिया और तेरे को रेम्युनरेशन निकालना है, तो तू जून तक का नहीं निकालेगा, मार्च, तो जून के लिए जो निकालना है, समझ में आया? वैसा कल वो मार्च तक ही होगा, अप्रैल टू मार्च, एवरेज कैलकुलेट करता है अप्रैल टू मार्च ही होगा, समझ में आया? ओके, तो अगर मैं 4 साल में निकाला, मेरे को ऐसे बताओ, 4 साल में निकाला, 4 साल में, और जिसमें मैं एकदम 5-4 एग्जाम्पल देता हूँ, ओके, 4th ईयर में मुझे निकाला, मतलब 4 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल बचा था, 1 साल बचा था, मेरे को निकाला, जिसमें फर्स्ट ईयर मुझे 1 CR मिला, सेकेंड ईयर मुझे 2 CR मिला, थर्ड ईयर मुझे 3 CR मिला, और 4th ईयर मुझे 4 CR मिला। यार मेरे को कंपनसेशन क्लेम करके दो, कितना मिलेगा? मेरा पहला क्वेश्चन है, कंपनसेशन कितना साल के लिए मिलेगा? पहला क्वेश्चन। 4 ईयर है ना, तो 2
2 साल है 4th ईयर कंप्लीट हो गया है, 4 साल कंप्लीट हुए, हाँ 4 साल कंप्लीट हो गया, कितना? ओके, इट विल बी 1 ईयर और 3 ईयर विच एवर इज, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो ये 1 ईयर, अब मेरे को बताओ 1 ईयर को अमाउंट क्या कैलकुलेट करोगे? 1 to 3 नहीं होगा, यही तो पॉइंट है, रीसेंट पिछला, ये उल्टा करोगे आप। 2, 3, 4 का एवरेज निकालो और जो एवरेज होगा वो इस 1 ईयर से मल्टीप्लाई करो और जो भी आपको फिगर मिलेगी वो कंपनसेशन 202 में क्लेम करोगे। क्लियर ना मालिक? डन मालिक? एनी डाउट हियर? कोई भी दिक्कत नहीं ना मालिक? क्लोज करें इसको। इजी है, मतलब बस थोड़ा सा शांति से पढ़ लेना, मतलब मैं थोड़ा सा ये पॉइंट है, बट ये ऐसा नहीं कि जिसमें मेरा बहुत ब्रेन लगाना पड़ेगा। हाँ, बट ब्रेन किधर लगाना पड़ेगा? ये ब्लैक में, ये मैंने समझा दिया। ये 6 केसेस में क्या नहीं होगा? कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, परफेक्ट। ओके, मैं एक चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई नहीं और वो थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंट थी, लेकिन वो पॉइंट अपने डिस्कशन करने वक्त बताया था कि अगर ऐसा हो गया कि एमडी रेम्यूनरेशन निकालते जाता है, वो एडवांस भी निकाल सकता है। तो एग्जांपल 21-22 के लिए, अभी 21-22 चल रहा है ना? ओके, नहीं सॉरी, 2021 चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का, मार्च एंड होगा तो 21 खत्म होगा, मतलब फाइनेंशियल ईयर है 2021। और मैंने अभी तक 15 करोड़ विड्रॉ कर लिए। कितने कर लिए बेटा? 15 करोड़। अब मेरे को बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अभी बनेंगे 31 मार्च के बाद, और जब मई में बोर्ड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किए उसके हिसाब से 10 करोड़ आए। तो मैंने कितना एक्सेस विड्रॉ किया? 5। तो ये 5 वापस रिटर्न करना पड़ेगा ना? ये अगले 2 साल में मुझे 5 CR रिटर्न करने पड़ते हैं, ये सेक्शन 197 बोलता है। ठीक है, पर वो अपने को डिस्कशन करने वाले नहीं है। कितने साल में करना है? विद इन 2 ईयर्स। और अगर नहीं करना है तो SR पास करना पड़ेगा। एक्सेस दिया तो अपन SR करते हैं ना, एक्सेस तो SR करना पड़ता है। अब किस्सा समझो करो, ये तो बेसिक है, ठीक है, ये मेरे लिए इंटरेस्ट भी नहीं था, ये दिस इज ओके, गुड इनफ। मेरे लिए मेन पॉइंट क्या है? मेरे लिए मेन पॉइंट यहां पर ये है, 2021 में मैंने, मेरा रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन में 15 करोड़ आया, कैलकुलेशन में 21, 22 बीत गया, मैं एमडी हूं, मैं हूं, 22, 23 बीत गया, 24 में हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन अभी आपको ऑलरेडी पता है, इन्वेस्टिगेशन 210 में हुई। 210 याद रहेगा? अभी याद रहेगा ना? ओके, 210 में हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हमारे वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया। रीस्टेट मतलब वापस रीडिफाइन किया गया, क्योंकि ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू ऐसा कुछ होता है। और रीस्टेट करने के बाद मालूम पड़ा कि अगर उस रीस्टेट करने के बाद अगर कंपनसेशन, ये मैनेजर रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करते थे, ओके, ये कौन से ईयर का बोल रहा हूं मैं? ये 2021, ये रीस्टेट किया गया 2021 का। तो अगर वो करते थे 12 करोड़ मिलते थे, लेकिन वो कितने कर लेके गया? 15। उस ईयर के इसमें वो लिमिट में था, इसलिए मेरे पास 2 साल का ये वो कुछ टाइम लिमिट नहीं था, उस साल में तो लिमिट में था, लेकिन वापस रीइंस्टेट हुआ ना, रिकवरी। कोई भी एमडी होने दो, पुराना एमडी छोड़ के चला भी गया, रिकवरी होगी, क्योंकि रीस्टेट हुआ है, फ्रॉड हुआ था, कुछ हुआ रहेगा, रीस्टेट किए जाते हैं। सेक्शन 130, 129, 130 कंपनी एक्ट के 130, 131 अगर देखोगे तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट किए जाते हैं। गलती से कुछ अपडेट हो गया, मॉडिफाई हुआ, तो आपके पास भी 3 साल का ऑप्शन होता है। तो ये 3 साल तक की है? नहीं, वो तो 3 साल का उसमें है, इन्वेस्टिगेशन होते हुए पहले का भी निकला तो क्या दिक्कत है? रीस्टेट कभी भी, इधर ये प्रीवियस ईयर नहीं दिया हुआ है। तो 199 इज रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन। देखो 202 क्या था? तेरे को पहले निकाला तो तू मुझसे पैसे ले, ओके। 199, ओके, तूने ज्यादा लिया है, मुझे वापस दे। लेकिन ज्यादा क्यों लिए थे? तू एक्सेस विड्रॉ नहीं किया, तूने तभी कैलकुलेशन किया था तब बरोबर था, लेकिन वापस रीस्टेट हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वापस मॉडिफाई हुए, और उसके हिसाब से तेरा रेम्यूनरेशन कितना आ रहा है? 10 करोड़। अब यहां पर अपन वेव ऑफ नहीं कर सकते, ओके। अगर एक्सेस विड्रॉ करता तो अपने पास एसआर का ऑप्शन है ना। मेरे को बताओ, कैन डायरेक्टर विड्रॉ मोर देन, एमडी कैन विड्रॉ 5% से ज्यादा प्रॉफिट? यस, बाय पासिंग। तो यार अगर वो विड्रॉ भी ज्यादा करता है, एसआर पास करके हम लोग क्लोज कर सकते थे, लेकिन यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट 199 में कॉन्सेप्ट नहीं है। 199 में रिकवरी होगी, इसलिए 199 मैंने बोला ना लास्ट में, क्योंकि 202 और 199 याद रखो। 202 कंपनसेशन, 199 रिकवरी। समझा? नहीं समझा? एग्जांपल समझा? ये केस समझ गया? दैट्स इट, स्टोरी ओवर, खत्म स्टोरी। ये 4 सेक्शन तो क्लियर है। तो मेरे को बताओ क्या क्या पढ़ा? 200, 201, 202 और 199। 200 किसके लिए है? लिमिट रेम्यूनरेशन। 201 किसके लिए है? सीजी का, MR2 का। और 202 किसके लिए है? कंपनसेशन। और 199 किसके लिए है? रिकवरी। खत्म मालिक, पक्का?
क्लियर। और लास्ट सेक्शन जाता है, लास्ट पोर्शन जाता है, दैट इज 203, 204, 205। 204, 205 मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। 204, 205 इज अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, तो अपन वो नोट से करेंगे ना, उस टाइम पे देख लेंगे, वो नोट्स वाले पोर्शन में अपन कवर कर लेंगे, लेकिन समझने वाला पोर्शन जो है वो 203 है। इवन चार्ट भी मैंने 203 का बनाया, 204, 205 का। सेक्रेटरियल ऑडिट कंपलसरी है, बस वही एक पोर्शन है। मतलब वो सीएस जो है ना, सीएस अपॉइंट करते हैं, वो लोग क्या क्या काम करेंगे वो डिस्कस है, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड अदर थिंग्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू 100% उसके आने की संभावना नहीं है, लेकिन बस उसका एक कंपल्शन कब है वो अपने को डिस्कस करना चाहिए, तो उतना आपने याद रखना चाहिए। ओके, वो 204, 205 की बात कर रहा हूं। तो अभी अपन पहले खाली एक ही सेक्शन डिस्कस करें, वो कौन सा, 203, और इस पे अपन ये क्लोज कर देंगे, और वो आगे जब करेंगे तब देखेंगे। मालिक क्लियर। तो सबसे पहले 203 इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। केएमपी का फुल फॉर्म बेटा की मैनेजरल पर्सन। अब की मैनेजरल पर्सन कौन होता है ये 203 का पढ़ने के बाद समझेगा। तो आप ऐसा अनुमान मत लगाना एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, नहीं, उन्होंने बताया वही की मैनेजरल पर्सन है, तू अपनी मर्जी से मत लेना केएमपी। तो सेक्शन का इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, सबसे पहले विच कंपनी नीड टू अपॉइंट केएमपी। सबसे पहले दिमाग में डालो, विच कंपनी नीड टू अपॉइंट केएमपी। तो अगर आप देखोगे तो पहला नाम तो आपके लिए क्लियर आना चाहिए, कौन, लिस्टेड कंपनी। दूसरा पब्लिक कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 10 CR। वो याद है 10, 50, 100, उसमें से 10 की लिमिट हर जगह मिलने वाली है, समझ में आया। ओके, प्राइवेट कंपनी को एक बार के लिए छोड़ दो, प्राइवेट कंपनी मत डिस्कस करो। अब मेरे को बताओ, मतलब किसको केएमपी अपॉइंट करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी किसको किसको करना है, लिस्टेड कंपनी और पेड और पब्लिक कंपनी विच पेड अप। लिस्टेड के लिए पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, पब्लिक के लिए पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ से ज्यादा, तो उनको केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा। केएमपी में कौन आएगा, समझो शुरू। ओके, एमडी, एमडी का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ, सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर। यानी ये तीन में से एक चाहिए मुझे, तीन में से एक, तीनों नहीं, तीन में से एक चाहिए कंपल्शन में। कंपल्शन में हर लिस्टेड कंपनी में मुझे तीन नाम में से एक नाम चाहिए, हर पब्लिक कंपनी में जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, ये तीन में से एक नाम चाहिए। एंड समझ में आया, एंड मतलब इनके अलावा भी और नाम क्या चाहिए, समझ में आया। ओके, एंड अब मुझे क्या चाहिए, ओके, एंड यहां पर रहेगा अगर ये कुछ एब्सेंस हो रहे हैं, मतलब ये तीनों आपने नहीं रखे इन देयर एब्सेंस। इंटरप्रिटेशन सेक्शन का कैसा है, ओके, आपको WTD रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, WTD। WTD मतलब क्या, होल टाइम डायरेक्टर। और जब मैं होल टाइम डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, ओके, ये आपको ध्यान रखना होगा, होल टाइम एंड है, एंड है, तो होल टाइम डायरेक्टर आपका रहेगा, और होल टाइम डायरेक्टर के साथ में आपको दो और अपॉइंटमेंट चाहिए, एक है CS और एक है CFO। CA नहीं है, CA नहीं है, CS और CFO। CS का फुल फॉर्म कंपनी सेक्रेटरी, और CFO का फुल फॉर्म चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके, ये पॉइंट का इंटरप्रिटेशन ध्यान में रखना, एवरीबॉडी क्लियर। अब यहाँ पर ये लिखने का तरीका ऐसा था, पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आराम से, शांति से। लास्ट आंसर है ये लेक्चर के लिए, अच्छे से घाई मत करना। मेरे को बताओ KMP में कौन कौन आता है, MD और CEO और मैनेजर, WTD, हाँ, CS, मतलब मेरे को बताओ एक कंपनी में कितने KMP चाहिए, कितने, चार कैसे, MD और CEO और मैनेजर और WTD, ये तो इन तीन में से एक, और WTD और CS और CFO, ये है ना। ये देखने के बाद ऐसे ही लगता ना, पर ये ऐसा इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन नहीं है, इसीलिए एकदम आराम से। ये जब लिखा गया है, ड्राफ्ट किया गया, उसको मैं बता रहा हूँ, इसीलिए पढ़ते वक्त दिक्कत आती है। याद रखना, ये ऐसा लिखा है, एंड इन देयर एब्सेंस WTD। समझने की कोशिश करो, याद रखना ये लिखते वक्त, हाँ, अगर MD, CEO, मैनेजर ये तीन में से एक, और अगर ये तीनों नहीं है, WTD। अब ये ऐसा क्यों ड्राफ्टिंग है वो सेक्शन का, उसमें अपन घुसते नहीं है, जाने दो। बस तुम दिमाग में रखोगे यहां पर कितने जन चाहिए, 3। ओके, कुछ समझ में आया, अभी 3 ही चाहिए, पर लिखने का तरीका ऐसा है, आप एग्जामिनेशन में ऐसा ही लिखना। ओके, और एंड इन देयर एब्सेंस WTD, समझ आया। बिकॉज MD, बस इतना सा भी बता दूं, MD, CEO और मैनेजर, ये तीनों का पावर एट पार है, WTD का पावर एट पार नहीं है। तो अगर ये तीनों नहीं रख पा रहे हो तो WTD रखो इस कंसेप्ट में, ठीक है। ओके, मेरे को बताओ KMP किसके, कौन सी कंपनी के लिए अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, लिस्टेड और पब्लिक, 10 करोड़। अगर कोई प्राइवेट कंपनी, अमेंडमेंट नवंबर 20 का अमेंडमेंट, नवंबर 20, अभी तक जैन में भी एग्जाम में नहीं आया। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, क्या बोला मैंने, प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको कंपलसरी, ओके, CS रखना बहुत जरूरी है। दिस इज नवंबर 20 अमेंडमेंट।
मालिक सी क्लियर है, एवरीबडी क्लियर, अरे हाँ या ना, ओके। और ये केएमपी का कैटेगरी याद रखना, केएमपी की कैटेगरी, आगे इतने सारे पॉइंट पढ़ने हैं, ये सारे पॉइंट एप्लीकेबल है गवर्नमेंट कंपनी को भी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जो लिस्टेड और पब्लिक में आएगी, लेकिन ये जो क्राइटेरिया ना, ये रेड में लिखा है, ये रेड है, जो रेड में लिखा है, ये गवर्नमेंट कंपनी को इतना ही एप्लीकेबल नहीं है, रेड वाला पोर्शन एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रख। नहीं समझेगा तो मेरे को थोड़ा सा इस पे समझाना पड़ेगा। देखिए आगे अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे कि मेरे को बताओ केएमपी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, मेरे को ये बताया कि केएमपी निकलेगा तो कैसे होगा, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। ये सब गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है, सबको है, सब गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल है। तो फिर इस सेक्शन में से गवर्नमेंट कंपनी को क्या एप्लीकेबल नहीं है, ये जो रेड वाला पोर्शन मैंने लिखा है ना, ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी गवर्नमेंट कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि मैनेजर रखना है, एमडी रखना है, होल टाइम डायरेक्टर रखना है, उनको एक ही रखना है, उनको दो रखने हैं या नहीं रखने हैं, उनके ऊपर है। लेकिन अगर उनको एमडी रखना है, प्रोसीजर यही होगा आगे जो पढ़ रहे हैं। नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, मैं बोल रहा हूं। ओके एग्जांपल, रेस्ट्रिक्शंस है, अपॉइंटमेंट बोर्ड रिजोल्यूशन से होगा, केएमपी एक ऑफिस में काम करेगा, एमडी दो कंपनी में रहा तो कैसा रहेगा, ये सब रेस्ट्रिक्शन, ये सब पॉइंट किसको एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट कंपनी को भी एप्लीकेबल है। और लिस्टेड एंड पब्लिक विच इज 10 करोड़ से ज्यादा, उनको एप्लीकेबल है ये सारा। ये समझ में आया, ये समझ में आया। लेकिन इसमें से जो रेड वाला पोर्शन लिखा है ना, ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। यानी गवर्नमेंट कंपनी को कम से कम 3 जन रखना है, ये कंपलसरी नहीं है, एक भी रखा तो चल जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी का चॉइस है। एक भी नहीं रखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रखा तो आगे के पॉइंट आएंगे, एक भी नहीं रखा तो पूरा सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है। लेट गवर्नमेंट डिसाइड। पर समझा, पर इन्होंने क्या क्लियर किया है कि ये सिर्फ सब सेक्शन 1 जो है रूल्स का, वो एप्लीकेबल नहीं है, बाकी पूरा सेक्शन एप्लीकेबल है। तो वैसे भी सर ये अप्लाई नहीं हुआ तो वो आगे कहां जाएगा? अप्लाई नहीं हुआ तो मतलब क्या, तो वही तो मैं बोल रहा हूं, फिर गलत जा रहे हो। मेरे को बताओ इनका अपॉइंटमेंट किसमें होगा, अपॉइंटमेंट किसमें होगा, केएमपी का बोर्ड मीटिंग में। ओके, केएमपी में सीईओ आता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है। ओके, अभी तक ऊपर के पोर्शन में कभी भी सीईओ पढ़ा अपन ने नहीं, अपन ने क्या पढ़ा, मुझे एमडी, मैनेजर और डब्ल्यूडीटी। तो सीईओ का अपॉइंटमेंट चैप्टर 3 का ऊपर वाला पोर्शन गवर्न नहीं करता, लेकिन 203 सेक्शन गवर्न करता है। तो अगर आपकी लिस्टेड कंपनी है और आप सीईओ अपॉइंट कर रहे हो, आपकी लिस्टेड कंपनी है, सीईओ अपॉइंट कर रहे हो, तो ऊपर वाले सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 203 एप्लीकेबल होगा। तो 203 बताएगा कि आगे अपॉइंटमेंट कैसे होगा। समझ में आ रहा है? देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, मैनेजर का अपॉइंटमेंट या डब्ल्यूडीडी का अपॉइंटमेंट, ये आप मेथड समझ चुके हो, 2 मेथड है, मालूम है ना। लेकिन व्हाट अबाउट सीईओ, व्हाट अबाउट सीएफओ, व्हाट अबाउट सीएस, 203 से होगा उनका। अब क्वेश्चन ये आया, सर गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं तो एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोल रहा हूँ वही समझना शुरू करो। गवर्नमेंट कंपनी को ये मिनिमम ये रखना है, ऐसे रखना है, ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें 2 केस होंगे, एक है गवर्नमेंट कंपनी एक भी नहीं रख रही है, तो पूरा सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी सीईओ अपॉइंट कर रही है, फिर आगे का एप्लीकेबल होगा। बैठ गया दिमाग में, मेरे ख्याल से समझ में आया। तो गवर्नमेंट कंपनी को ऐसा नहीं कि पूरा सेक्शन ही गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, ये बोलोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, द सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। तो वो जो आपको रखना है वो आप रखो, बाकी वाले सेक्शन एप्लीकेबल है। तो अगर अपॉइंटमेंट करोगे तो आगे के मेथड फॉलो करो। मेरे ख्याल से क्लियर, ठीक है। अब बहुत बार कंपनी में देखोगे तो सीएमडी पढ़ोगे। सीएमडी का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएमडी बोलते हैं उसको, सीएमडी। अंबानी साहब अपने सीएमडी है। मेरे को बताओ चेयरमैन मतलब कौन, चेयरपर्सन, कास्टिंग वोट। ओके, यहां पर रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन ये दी है कि सीएमडी और एमडी एक साथ में नहीं हो सकते, कंडीशंस दी है, वो कंडीशंस आपको रटनी है, बात खत्म। ओके, रेस्ट्रिक्शंस ऑन चेयरमैन, चेयरमैन एमडी चेयरमैन नहीं हो सकता, या सीईओ चेयरमैन नहीं हो सकता, अनलेस एंड अनटिल एओए स्पेसिफाई नहीं करे एंड कंपनी का कोई मल्टीपल बिजनेस नहीं है। यानी आपके पास कितने बिजनेस होने चाहिए, एक ही बिजनेस होना चाहिए और आपका एओए में मेंशन होना चाहिए, तो ही एमडी सीएमडी बन सकता है या सीईओ चेयरमैन बन सकता है। समझ में आया? क्यों, चेयरमैन का कास्टिंग वोट है भाई। वापस मैं बोल रहा हूं, क्या समझा है, मैं समझ में आया क्या? रेस्ट्रिक्शन ऑन चेयरमैन है, चेयरमैन। ओके, रेस्ट्रिक्शन ऑन एमडी एंड सीईओ नहीं है, रेस्ट्रिक्शन ऑन चेयरमैन। एमडी और सीईओ कैन नॉट बिकम ए चेयरमैन। समझ में आया? वो चेयरमैन नहीं बन सकते अनलेस अनटिल आर्टिकल स्पेसिफाई नहीं करता और मल्टीपल बिजनेस नहीं है आपके। सर फिर तो मुकेश भाई अंबानी तो सीएमडी है भी, तो इस केस में उनके तो मल्टीपल बिजनेस है, रिलायंस के तो मल्टीपल बिजनेस है। फिर आगे रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइजो। ओके, अगर आपकी कंपनी के मल्टीपल बिजनेस है तो आप सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एक ही हो सकता है, कंडीशन
पहली कंडीशन, आपका पेटेड शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है। एंड तीसरी कंडीशन, आपके मल्टीपल बिजनेस के सेपरेट सीईओ है, सेपरेट चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो हर बिजनेस को संभाल रहे हैं। ओके, ये तीनों और नहीं है, एंड है। ये तीनों हुए तो फिर मल्टीपल बिजनेस में सीएमडी बन सकता है। समझ में आया? 100 करोड़, 1000 करोड़ और मल्टीपल बिजनेस के सीईओ, ये पॉइंट है। दिस इज समथिंग 203 का केएमपी का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट लेकिन याद रखना पड़ेगा अपने को। तो मेरा क्वेश्चन है, कैन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बी सेम? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी सेम। आंसर इज यस। कैसे लिखोगे? कंडीशन एओए में स्पेसिफाई होगा एंड कंपनी डज नॉट हैव ए मल्टीपल बिजनेस। एक लाइन छोड़ो, इफ कंपनी हैव मल्टीपल बिजनेस, in that case if it complies with 3 following condition, okay, so chairman and managing director can be one. 3 condition, so the 100 करोड़, 1000 करोड़ एंड हर एक बिजनेस का सीईओ है। इसलिए तो उनके सीएमडी एक ही होते हैं। टाटा में सीएमडी एक ही है, इन्फोसिस में सीएमडी एक, बिकॉज दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। एनीथिंग क्लियर मालिक? डन। ओके, अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड रिजोल्यूशन, ये तो आपको भी पता है। और इसमें एक क्लियर होना चाहिए, बोर्ड रिजोल्यूशन मतलब बोर्ड मीटिंग में। और अगर आपको याद नहीं आ रहा है, मैं चैप्टर 3 को रिकॉल करना चाहूंगा मालिक, चैप्टर 2 को रिकॉल करना चाहूंगा, जिसमें आपने 179 पढ़ा। 179 पावर्स ऑफ बोर्ड। याद आया? पावर्स ऑफ बोर्ड, 179 पावर्स ऑफ बोर्ड। पावर्स ऑफ बोर्ड में कुछ पावर बोर्ड मीटिंग में यूज किए जाते हैं। 10 पॉइंट थे, 3 शेयर, 3 पैसा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस। याद आया? उसके बाद रूल्स थे, रूल्स में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। याद आया? तो ये 179 की वजह से इसको बोर्ड मीटिंग में, 179(3) केस में रूल्स की वजह से इसको बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट करना पड़ता है। आई डू थिंक समझ में आ गया मालिक? डन मालिक। एंड केएमपी ओनली वन ऑफिस, ये तो लॉजिक क्लियर ही है। ओके, अगर आप एक कंपनी में केएमपी बने हो तो दूसरी कंपनी में केएमपी नहीं बने। इधर भी सीईओ है, उधर भी सीईओ है, 10 जगह सीईओ है, तो नहीं चलेगा भाई। तो केएमपी कितनी ऑफिस में बन सकता है तू? सिर्फ एक, बिकॉज की मैनेजर पर्सन, मतलब तू, तेरी वजह से कंपनी चल रही है भाई। एमडी हो सकता है ना, केएमपी। अगर तू कंपनी का केएमपी के थ्रू अपॉइंट हुआ है, तो कंपनी का केएमपी के थ्रू अपॉइंट हुआ है तो एक। तेरा अपॉइंटमेंट अगर 203 में हुआ है तो एक ही कंपनी बनेगा, एमडी है। अभी उसको रिलैक्सेशन अगले पॉइंट में दिया ना, आ रहा है ना भाई? समझा? अभी तक का क्या है तेरा? तू केएमपी कितने कंपनी में बनेगा? सिर्फ एक ही कंपनी। समझ में आया? फ्रीज करे। ओके, फ्रीज हो गया। अब केएमपी वो एक में बनेगा, लेकिन इन्होंने एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। सब्सिडरी में बनाना चाहते हो तो बनाइए। अगर आपकी कोई सब्सिडरी है, देखो वही सेम कंपनी चला रहे, तो केएमपी वो सब्सिडरी कंपनी में बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिलैक्सेशन है, तो सब्सिडरी में तुम बन सकते हो। ये हो गया। अब क्वेश्चन आया एमडी इन 2 कंपनी। अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला आपने? एमडी कैन बी ओनली बिकॉज ही इज केएमपी, तो ही कैन बिकम ओनली वन कंपनी। तो अगर एमडी को आप केएमपी ट्रीट कर रहे हो और वो एक ही कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन दी है। ओके, ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी बोली है, पता नहीं याद आ रही कि नहीं आपको ये ध्यान रखना होगा। सेकेंड कंपनी विच इज अपॉइंटिंग हिम, विच इज, देखो पहली कंपनी तो डिसाइड कर लिया होगा ना, ओके, केएमपी है, मतलब एमडी है। सेकेंड कंपनी विच इज अपॉइंटिंग हिम एज ए एमडी, हिम और हर, दिमाग मत खराब करना मेरा, एज एमडी, मेरे ख्याल से क्लियर है, एज एमडी। तो यहां पर बोर्ड रिजोल्यूशन यूनानिमस होना चाहिए। ओके, यूनानिमस, मेरे ख्याल से क्लियर। तो मेरे को अभी आज बता दो, बोर्ड रिजोल्यूशन यूनानिमस कब कब चाहिए? रिकॉल करो, रिकॉल 2 जगह, 203 और 186 मतलब लोन्स इन्वेस्टमेंट्स। याद करने को 186 में 185 प्रोहिबिटिव सेक्शन, याद आया? 185 लोन इसको नहीं दे सकते। ओके, 186 लोन जिसको दे सकते हो, बोर्ड रिजोल्यूशन यूनानिमस होना चाहिए। तो आप रट्टा कर लो दिमाग में, बोर्ड रिजोल्यूशन यूनानिमस किधर चाहिए? 186, 203। और जनरल मीटिंग का यूनानिमस कब चाहिए अगर आपको याद होगा तो? ओके, 162 में, अगर याद है, अगर मैं सिंगल रिजोल्यूशन पढ़ रहा, परफेक्ट। अगर आपको याद हो गया तो ये चीजें करना, तो आपका एमसीक्यू तो कहीं वे से छूटता नहीं भाई, ये तो क्लियर होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमारे क्लियर? और ये नहीं हुआ तो पेनल्टी है। पेनल्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 5 लाख रुपए है, हर डायरेक्टर केएमपी को रहेगा। मैक्सिमम 5 लाख तक, मतलब 5 लाख से चालू होगा और एक्सटेंड जो भी होगा वो आगे होते जाएगा, और कंटिन्यू तो कुछ रहेगा जो अपन लास्ट में रखेंगे। पेनल्टी को मैं कहीं पर भी नहीं लिखा, तो लास्ट में अपन अपडेट करेंगे। ठीक है मालिक, यहाँ तक की कहानी खत्म हो जाती है। एंड दिस इज योर चैप्टर 3। चैप्टर 3 में से मैंने 2 सेक्शन छोड़े हुए हैं, क्योंकि वो नोट्स पढ़ते वक्त मैं करूंगा 205, 203, 204 एंड 205। तो उसमें पहले 205 पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी, और 204 बाद में पढ़ेंगे। 204 इज अबाउट ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड 205 is applicability of secretarial auditor.
तो सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में अपन देखेंगे मालिक। क्लियर, मतलब उल्टा बोला मैंने। 204 इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट एंड 205 इज अबाउट ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी। तो पहले 20 ड्यूटी समझ लेते हैं और उसके बाद वो कर लेते हैं, रीड करते वक्त देखेंगे। पर बाकी अदर देन दैट आई डू थिंक नाउ यू आर कंफर्टेबल विद चैप्टर 3। मेरे ख्याल से मैंने मतलब चैप्टर 3 का मेरे ख्याल से मतलब हर एक चीज़ बता दी है मैंने, उसमें से कोई पॉइंट ऐसा छोड़ा नहीं है। बस आप वापस पढ़ लो और अच्छे से दिमाग में डाल दो मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है मालिक, तो आज के लिए अपन इस पे रोक देते हैं। ओके और एक पॉइंट मैं बताना रह गया मालिक। ओके ये 2-3 दिन लेक्चर बिकॉज ऑफ देयर वाज मेजर कोविड केसेस थे, तो अपने इधर जो बिल्डिंग है उसमें सैनिटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो 1-2 दिन अपनी रिकॉर्डिंग का प्लस माइनस हुआ है। ओके बिकॉज ऑफ कंप्लीट बंद था, बिकॉज कोविड केसेस आए एंड दैट इज़ अ बेसिक रीज़न। एंड कल मैं और चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 का कल रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, चैप्टर 5, चैप्टर 6, और उसके अलावा मैं ट्राई करूँगा 7th और 8 भी खत्म हो जाए, छोटे छोटे चैप्टर्स है वो गो थ्रू करके। ओके अदर देन दैट मैं एक अप्रॉक्सीमेटली आई विल नॉट बी देयर फॉर 5 डेज, थोड़े से मैं बाहर रहूँगा। ओके पर्सनल रीजन के से, तो प्रोबेबली जो आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा वो संडे, नेक्स्ट मतलब अभी आज संडे है, उसके नेक्स्ट संडे मतलब कल मिल जाएगा, कल के बाद बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट प्रोबेबली संडे, और उसके बाद संडे या मंडे, आइदर ऑफ इट, संडे और मंडे, मतलब मैक्स टू मैक्स आप मंडे ही पकड़ लीजिए। तो मंडे से लेकर मैं थर्सडे या फ्राइडे तक मेरा पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो एक 5 दिन का लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली और बचा है, 5 डेज का बचा हुआ है। ओके तो थोड़ा सा ये बिकॉज ऑफ कोविड का पॉइंट हुआ, तो सैनिटाइजेशन तो 2-3 दिन मेरे उसमें निकल गए, तो आई कांट डू रिकॉर्डिंग बिकॉज मल्टीपल चीज़ें एंड उसके मतलब कंप्लीट बंद रखा हुआ था। ओके तो इवन ऑफिस में भी आए नहीं थे, तो ये सीन है। तो अगर मैं इसमें ये बताऊंगा कि अगर आपका कुछ ये पॉइंट प्लान किया होगा तो उसमें थोड़ा सा प्लान में आप चेंज कर दीजिए, इट में हैपन, देयर आर सर्टन रीजंस एंड ये मतलब सर्कमस्टेंस की वजह से प्लान में प्लस माइनस है ही। बट अदर देन दैट एक 6-7 दिन आप दूसरा कोई सब्जेक्ट में हाथ मतलब कर लीजिए मालिक, और उसके बाद नेक्स्ट वीक से आपका लेक्चर ये अपडेट वापस हो जाएगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर कोविड का कुछ इश्यूज वापस हुआ तो मैं प्लान कर रहा हूँ ये वैसे सिस्टम मैं घर पे लेके चले जाऊँगा और घर पे मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। फिर वो जो 3 पंटर का है फिर ठीक है, उसको देखते हैं। पर मेरा जहाँ तक है ये कॉन्सेप्ट है, तो बिकॉज बिल्डिंग में केसेस आए, इवन मेरे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में भी केसेस है। ओके तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रहा है कि केसेस आने के कारण इज़ बेसिकली वैक्सीनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ाना। बट आई डोंट नो, मतलब मेरे को जैसे पहले पिछले साल जो फियर था कोविड का, जो इम्पैक्ट था कोविड का, ओके दिस ईयर में मतलब आज शायद मैं कोविड के साथ रहना सीख लिया हूँ, तो वो नहीं है। पर मेरे को केसेस दिख रहे हैं और वो बीएमसी आ रहे हैं यानी वो कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न हो जा रहा है। बाकी अदर देन दैट बस अपने को कोविड हो चुका, अपनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, अपन तो माहौल है, अपनी तो जिंदगी तोड़ जी रहे हैं, तो और अभी डर एक बार हो गया, डर निकल जाता, तो वो तो अपने अंदर निकल गया वैसे भी पूरी ये कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी कोविड गया नहीं है। तो इसीलिए मास्क और सैनिटाइजर अच्छे से यूज़ करिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ अभी केसेस आए और उसकी वजह से मैंने मतलब अभी हाल फिलहाल में तो मैंने इधर तो कहीं डेथ वेथ का कोई कॉन्सेप्ट सुना नहीं मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं यार आइसोलेशन रहना, और वो मैं बताऊँ सबसे वर्स्ट फेज है वो आइसोलेशन रहने का। तो वो जो है आइसोलेशन वापस लॉकडाउन जैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है यार, वो एक बिल्डिंग में या एक फ्लोर पे, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाता है मालिक। सो टेक केयर, स्टे प्रिकॉशन अच्छे से लीजिए, मास्क लीजिए, सैनिटाइजर लीजिए। ओके ऐसे उसे नहाइए मत सैनिटाइजर से, सैनिटाइजर खाली हाथ में लीजिए और उसको यूज़ कीजिए, अच्छे से कीजिए, एंड जिससे वो काम हो जाए, है ना मालिक? तोड़ मालिक।